નમસ્કાર પશુપાલક મિત્રો, કામધેનુ યુનિવર્સિટી આયોજિત ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, અત્યારે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં લમ્પી સ્કિન ડિઝીઝ નામનો રોગ છે એ ફેલાયેલો છે અને પર્ટિક્યુલરલી ગૌવંશ છે જે ગાયો છે એમાં આ રોગ છે વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને આ રોગ છે એનો ફેલાવો છે એ પણ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ રહ્યો છે। આ રોગ ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાતો હોવાથી અત્યારે આ રોગને નિયંત્રણમાં લેવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે। એટલે પશુ ચિકિત્સકો છે એની ટીમ છે એ એમની રીતે કામ કરતી હોય, પરંતુ રોગચાળા નિયંત્રણમાં લોક સમુદાય છે એ લોક સમુદાયોની પણ એક મહત્વની ભૂમિકા હોય છે। તો આ વિષયને ધ્યાને લઈ લંપી રોગના નિયંત્રણમાં લોક સમુદાયની શું ભાગીદારી હોઈ શકે એ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણે આમંત્રિત કર્યા છે ડોક્ટર સુરેન્દ્ર સાવરકર સાહેબને। સાવરકર સાહેબ કામધેનુ યુનિવર્સિટી હસ્તકની વેટરનરી કોલેજ જે જુનાગઢ ખાતેની વેટરનરી કોલેજ છે ત્યાં સહપ્રાધ્યાપક અને વડા તરીકે ફરજ બજાવે છે અને તેઓ વિસ્તરણ શિક્ષણ વિષયના નિષ્ણાત છે। તો હું ડોક્ટર સાવરકર સાહેબને વિનંતી કરું કે આપણા પશુપાલકોને લંપી રોગચાળા નિયંત્રણમાં લોક સમુદાયની શું ભાગીદારી હોઈ શકે એ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપે। ડોક્ટર सावरकर सर। आभार। किसान भाइयों, खेडूत भाइयों, राम राम, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, मुझे जो आज विषय दिया है लंपी रोग के नियंत्रण में लोक समुदाय की भागीदारी। आपको पता है कि आज के दौर में जो लंपी रोग गायों में भैंसों में जो चल रहा है और उसके कारण काफ़ी बीमारी एक विशिष्ट क्षेत्र में फैल चुकी है, उसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, दूध का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। तो खेडूत भाइयों, મને જો એક વિષય મળી ગયો છે આજે લંપી રોગના નિયંત્રણમાં લોકો સમુદાયની ભાગીદારી। તો તમને ખબર છે કે કોઈ પણ પશુમાં જો બીમારી આવે, આ બીમારી તમે નિયંત્રણ કરવાનું છે તો તમે આ બીમારી નિયંત્રણમાં જે પણ પશુપાલક છે, ગામના जो लोगो છે એનો ભાગીદારી बहुत જરૂરી છે, એનો ડિસિઝન મેકિંગ बहुत જરૂરી છે, એનો એક નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા बहुत જરૂરી છે। આ ગામની અંદર કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે તો जो પશુનો जो बीमारी है આ તમે અટકાવી શકાય। अब किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, काफ़ी राज्यों में हम लोगों ने आसाम, कर्नाटका, केरल, इन राज्यों में जो लंपी स्किन डिसीज हो रहा है पशुओं में, उसके बारे में काफ़ी हमने सुना है। लेकिन थोड़ा अगर हम इस बारे में और थोड़ा हम इतिहास इसका जानेंगे तो हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छी माहिती हम लोग रख सकते हैं। और आपने अगर ये जो बीमारी है, पशुओं की जो बीमारी है लंपी स्किन जो डिसीज एक संक्रामक वायरल रोग है, यानी विषाणुजन्य जो रोग जिसको बोलते हैं, वो एक पशु से दूसरे पशु में इसमें फैल सकता है, जिसको हम संसर्गजन्य रोग भी कह सकते हैं। और ये इस रोग में जो है जो गाठीदार त्वचा रोग वायरस के नाम से भी जो लोकल लैंग्वेजेस में इसको बोला जाता है, और कैप्रीफॉक्स वायरस जीनस के नाम जो कारण ये बीमारी हो जाती है पशुओं में। और सबसे पहले जो बीमारी 1929 में जो अफ्रीका जो वहाँ का जो जाम्बिया देश है, वहाँ पहले ये बीमारी पाई गई। फिर धीरे धीरे 2018-19 में इजिप्ट में पाई गई, फिर तुर्की में पाई गई, फिर जो रशिया हो गया, संयुक्त अमीरात हो गया, और ऐसे जो कंट्रीज है जो मध्य पूर्व और यूरोप में, इन देशों में भी यह बीमारी पाई गई। फिर धीरे धीरे अभी अगर आप देखोगे 2019 से आसाम हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में धीरे धीरे फैल रही है। और आज 2022 जो साल चल रहा है, इसमें तो आप देखोगे कि काफ़ी हद तक ये बीमारी पूरे राज्य में फैल चुकी है। तो ખેડૂત ભાઈઓ, આ બહુ જરૂરી છે તમે કે માહિતી તમે હોવું જોઈએ કે લંપી રોગ શું છે, એનો ઇતિહાસ શું છે। આ ગાય તો પ્રજાતિ છે, આ પશુઓને એક ચેપી વાયરલ રોગ છે, આ એક પશુમાંથી બીજું પશુમાં ફેલાવો છે, આની ભેંસ પ્રજાતિમાં પણ પશુમાં તમે જોવા મળે છે। આની जो લંપી जो સ્કિન ડિસીઝ વાયરસ, આ એનો जो મુખ્ય વાયરસનું નામ છે, આની કેપ્રીફોક્સ વાયરસ જીનસ એના દ્વારા થઈ જાય છે। આ એક સાયન્સની એક ટર્મ છે। તો
આફ્રિકાનો જો ઝામ્બિયા દેશ છે, આ દેશમાં સૌપ્રથમ 1929માં પ્રથમ જોવા મળી ગયા છે. અને 2018-19માં આ ઇજિપ્ત, તુર્કી આ દેશમાં પણ તમે જોવા મળ્યો હતો. અને પછી શું થયું કે મધ્ય પૂર્વ જો દેશ છે, યુરોપ છે, આ દેશોમાં પણ આ બીમારીનો પ્રકોપ થયું છે. અને 2019માં આપણું દેશનું આસામ છે, કર્ણાટકા, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में अपन आ रोग जोवा મળે છે. अभी क्या होगा किसान भाइयों, जो अगर आप देखोगे इस बीमारी का जो प्रकोप है कैसे हुआ है, गुजरात राज्य में भी आप देखो कि 2022 में जुलाई अगस्त महीने में काफी फैल चुका था. इसमें कम से कम 37,000 से अधिक मामले इसमें देखे गए और 1,000 से ज्यादा तो मौतें भी इसमें हुई है. और राजस्थान में अगस्त के महीने में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो रोग की गंभीरता है, और 1200 से ज्यादा मौतें हुई. काफी मौतें हुई, लेकिन जो रिकॉर्ड में होना चाहिए वो मौतें अभी इसके ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह है. लेकिन हरियाणा में भी अगर आप देखोगे, इसमें भी जो भैंसों का जो है संक्रमण है, भैंसों में भी, गाय से भैंस में भी ये संक्रमण भी पाया गया. ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है. और ખેડૂત ભાઈઓ, તમને ખબર છે કે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર આ રાજ્યોમાં પણ પ્રકોપ વધારે જોવા મળી ગયા હતા. એમાં તમે જુઓ તો ગુજરાતમાં તો 37,000 કે વધુ કેસીસ અહીંયા જોવા મળ્યા હતા અને 1,000 પશુઓનું મૃત્યુ પણ થયું હતું. અને 1 ઓગસ્ટ 22 સુધીમાં રાજસ્થાનમાં પણ આ રોગનો જો પ્રકોપ છે આ જોવા મળ્યો હતો અને 1200 થી વધુ પશુઓને એમાં પણ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો હરિયાણા પણ જો ગાય વર્ગનો જો પ્રજાતિ છે, આ ગાય પ્રજાતિ મારફત ભેંસમાં પણ આ રોગ જોવા મળે છે. એમાં પણ 34 ભેંસોમાં પણ લમ્પી સ્કિન ડિસીઝ જોવા મળ્યું હતું. किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग ये बीमारी जब सुनते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि भाई एक जमाने में कोविड नाम की बीमारी आती थी. कोविड नाम की बीमारी में जो आदमी है वो काफी डर जाता था, एक दूसरे से जो है एक डिस्टेंस बनाए रखता था, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखता था. तो हम लोग यदि देखेंगे कि इस बीमारी में क्या होता क्या है, कि जानवर जब बीमार होता है तो कितने टक्के लोग बीमार होते हैं, कितने टक्के जानवर बीमार होते हैं, जिस तरीके से कितने टक्के लोग कोविड में बीमार होते थे. तो इसी तरीके से इसमें कम से कम अगर आप देखोगे रुग्णता का जो प्रमाण है, बीमार होने का प्रमाण है, ये 10 से 20% प्रमाण है. और इसमें जो मृत्यु दर है 1 से 5% मृत्यु दर है. लेकिन कोई भी परिस्थिति में अगर हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर करते हैं, लोग सहभाग करते हैं, लोग भागीदारी करते हैं, गाँव में एक प्रकार की डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और सारे लोग मिलके अगर हम लोग पशु उत्पादन के मामले में, पशु जो है उत्पादन हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, रोग बीमारी कब कब होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम लोग काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफी अच्छी तरीके से बीमारी को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं. ખેડૂત ભાઈઓ, આ રોગના जो પ્રભાવ છે આ બહુ મોટા નથી, પણ એનો તમે ખબર કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કાળજી લેવું જોઈએ. એમાં જો રોગિષ્ઠતા છે 10 થી 20% તમે જોવા મળે છે અને એનો જો મૃત્યુદર છે वो 1 થી 5% છે. આ તો ઓછું છે, પણ તમે કાળજી ન લેવામાં આવે તો શું થાય કે તમારો જો પશુ છે આ પણ મૃત્યુ પણ પામે છે. તો એનામાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે જ્યારે આ જો બીમારી આ ગામમાં આવે તો એમાં તમે શું કરવાનું છે કે પબ્લિક છે, ગામનો જો લોક છે, પછી જેટલા પણ લોકો તમારે મિત્ર સર્કલ છે, કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, સંગઠન છે, આ એકત્રિત રીતે કામ થાય તો સારું રીતે આ બીમારીને ઉપર તમે નિયંત્રણ મેળવી શકાય. अब किसान भाइयों, लंपी स्किन डिसीज तो हम लोगों ने काफी सुना है, लेकिन हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये बीमारी फैल क्यों रही है, क्या कारण है इस बीमारी के फैलने का. क्योंकि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं नजरअंदाज करते हैं, हम लोगों ने जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बीमारी की जो फैलाव है या जो प्रसार है ये परजीवी के माध्यम से होता है. परजीवी आपने देखा होगा कि खून खराबा जो करने वाले जो कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती है, उसके बाद मच्छर होते हैं, किलनी होती है, टिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग. ये क्या है, जहां हम लोग पशु बांधते हैं, जहां हम लोग यदि साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, नालियां है, और उसके बाद काफी जाले हमारे पशु बाड़े में है, पशु को जहां हम खाना देते हैं वहां पे हम साफ सफाई नहीं रखते हैं,
तो वहां पे भी क्या होता है कि यह बीमारी, यह जो मक्खियां है, जो किलनियां है, जो मच्छर है, वहां पे बैठ जाते हैं। उसके माध्यम से ये जो वायरस है, ये वायरस जब पशु को जो परजीवी काटते हैं तो उसके माध्यम से ये वायरस की एंट्री या प्रवेश पशु के शरीर में हो जाती है। તો ખેડૂત ભાઈઓ, આ રોગના જો જવાબદાર જો પ્રજીવો છે, જંતુઓ, માખીઓ અને મચ્છરો, ઇતરડી, જેના ટિક્સ કહેવામાં આવે છે, લોહી પીવડાવીને એનો થાય છે। શું તમે કરવાનું છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે જ્યારે તમે જ્યાં પશુ બાંધતા હોય આ જગ્યા માખી છે, મચ્છરો છે, ઇતરડી છે, આ તમે સાફ કરતા નથી તો આ રોગ ઉત્પન્ન થવાનું જો પ્રમાણ છે આ વધારો થાય છે। તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે અમે પશુશાલા છે, પશુ બાંધવાનું જગ્યા છે, આ તમે સાફ કરવું બહુ જરૂરી છે, એનું પણ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે। किसान भाइयों, यह जो रोग है, यह रोग कैसे होता है? हम लोगों ने देखा है कि मच्छर है, मक्खियां है, किलनी है, वहां पे तो रहती है। लेकिन जब ये जो परजीवी है, जब पशुओं को काटते हैं तो क्या करते हैं? वो रक्त चूसते, खून चूसते हैं, और खून चूसने के बाद वो पशु के शरीर में उसकी एंट्री हो जाती है, प्रवेश हो जाता है। और उसके बाद जब इन्फेक्शन तैयार हो जाता है जहाँ पे पशु के शरीर में, तो आपको जो है कि वायरस जो है वो नाक से आपको स्राव देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आप, नाक से स्राव आ रहा है, ये देखिए नाक से स्राव आ रहा है, मुंह से भी यहाँ पे स्राव आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अश्रु का स्राव निकल चुका है। और यहाँ जो है अगर आप देखोगे जब कोई भी अगर समझ लीजिए नर है, नर पशु है, नए गाय वर्ग का जो पशु है, अगर संक्रमित है, ये पशु अगर इसका कोई संभोग हो जाता है ड्यूरिंग हीट पीरियड ऑफ जो भी है ना, जो मादा पशु है उसके साथ, तो उससे भी संक्रमण फैलने के काफी इसमें चांसेस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लार वगैरह होती है, इसके माध्यम से क्या होती है, जब लार टपकती है, खाने में टपकती है, जो हम खाना देते हैं, दाना देते हैं, जहाँ पानी होता है, उसके माध्यम से भी यह जो बीमारी है यहाँ वैसे फैल जाती है। तो दूसरी बात है कि जो पशु छोटे होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर एक संक्रमित माता है और वो बीमार लंपी स्किन डिसीज से है, तो उसका जो दूध है अगर वो बछड़ा अगर पीता है तो उसके माध्यम से भी बछड़े में भी इन्फेक्शन जाने के काफी चांसेस होते हैं। तो ये एक तरह का चेपी रोग है। तो चेपी रोग में हम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये रोग का जो प्रसार है ये कैसे होता है, और आगे चल के हम लोग देखेंगे इसका प्रसार हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो प्रसार का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ખેડૂત ભાઈઓ, આ રોગ ના જો ફેલાવો है કેવી રીતે થાય છે આ તમે માહિતી હોવા બહુ જરૂરી છે। અને વાયરસ જો છે લોહીમાંથી પણ જાવે છે જ્યારે આ મધુમાખી જો છે આ બાઇટ કરે છે। અને નાકમાંથી તમે જો નાકમાંથી પણ એક સ્રાવ આવે છે, અહીંયા પણ જો તમે મુંહમાંથી એક સ્રાવ આવે છે, આંખોમાંથી પણ સ્રાવ આવે છે। અને જો પણ નર પશુ છે એના વીર્યમાંથી પણ માદામાં આ પણ જો બીમારી છે આ ફેલાવાની શક્યતા વધારે છે। અને જો લાળ છે એના મારફત તો વધુ છે, કારણ કે જે પણ પશુ ખાદ્ય છે, પાણી છે, જ્યારે બધા પશુ એક જગા આવે તો એ ભેગા થઈ જાય તો અહીંયા પણ जो ચેપીનો રોગ છે આ ફેલાવાની બીમારીનો जो સંભાવના છે વધારે છે। અને જે પણ નાનું પશુ છે આ પણ ચેપગ્રસ્ત जो दूध द्वारा जो दूध पीता हुआ वाछरड़ा છે એમાં પણ આ બીમારી ફેલાવાની શક્યતા વધારે છે। તો આ પણ કોઈ પરિસ્થિતિમાં તમે ધ્યાન રાખવું વધારે જરૂરી છે। फिर किसान भाइयों, हम लोगों ने देखा होगा कि लंपी स्किन डिसीज में जो बीमारी होती है पशुओं में, तो बुखार आ जाता है काफी कुछ दिनों के बाद। तो उसमें यह जो वायरस है कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि इसकी भी माहिती किसान को होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो भी संशोधन हुआ है उस संशोधन में यही पाया गया है कि 11 दिनों के बाद आपको लार में भी वो विषाणु देखने को मिलेगा। 22 दिनों के बाद आपको वीर्य में जो है, जो नर पशु है उसके वीर्य में जो विषाणु या वायरस देखने को मिलता है। और 33 दिनों के बाद त्वचा की जो गांठें होती है, छोटी छोटी जो गांठें होती है, अगर आप उसका जो ऊपर का जो कवर है वो अगर आप निकालते हैं और उसका जो अगर सैंपल लेते हैं तो उसमें भी कई सारी प्रयोगशाला है, उसमें भी यह जो विषाणु है या वायरस है उसमें देखने को मिला है। तो ખેડૂત ભાઈઓ, તમે ખબર હોવી જોઈએ कि આ વાયરસ તાવ આવ્યા પછી
ક્યારે તમે જોવા મળે છે? આ તમે લેબોરેટરી જો છે, પશુ ચિકિત્સા પશુપાલન મહાવિદ્યાલય છે, પશુ ચિકિત્સા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ગવર્મેન્ટનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમાં જે પણ લેબોરેટરી છે અહીંયા તમે જોઈ શકાય. પણ ક્યારે તમે જોઈ શકાય? 11 દિવસ પછી આ લાળમાં તમે જોઈ શકાય. આ પણ જે લાળ છે ને, આ ટપકે છે, એમાં તમે જો આ એનો જો નમૂના તમે લેવો અને પરીક્ષા લેબોરેટરીમાં તમે મોકલો તો તમે આ સેમ્પલમાં તમે વાયરસ પણ જોઈ શકાય 11 દિવસ પછી. 22 દિવસ પછી તમે વીર્યમાં જોઈ શકાય. જે પણ નર પશુ છે, આ નર પશુનું જો વીર્ય છે, આ વીર્યમાં પણ તમે જોઈ શકાય. અને 33 દિવસ પછી તમે ત્વચાની જો ગાંઠે છે, આ જો ગાંઠે છે, આ પણ તમે એના જો પોપડી છે આ નીકળી જ આવે, એમાંથી તમે બ્લડનું સેમ્પલ તમે લેવામાં આવે તો અહીંયા પણ તમે આ વાયરસ જોવા મળે છે. પણ તમે જો ખુલ્લા આંખોથી તમે જોઈ ન શકાય, એમાં તમે પ્રયોગશાળા પણ જઈ શકે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર છે, આ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની માધ્યમથી તમે આ વાયરસ જોઈ શકાય. तो खेडूत भाइयों तमे आ ध्यान आ माहिती तमे होવું જોઈએ. अब किसान भाइयों, अगर आपने देखा होगा ये विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में हमने काफी तरह से इसके बारे में सुना है कि भाई पशु के शरीर में काफी गांठी आ जाती है तो ये यहाँ पाया, वीर्य में पाया जाता है, लार में पाया जाता है. तो हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए, इसका जो मल होता है, जो गाय का या भैंस का जो मल होता है, यह इसमें विषाणु अभी तक नहीं पाया गया है. सबसे महत्व की बात है. तो अभी इसमें वैसी डरने की बात नहीं है. और अत्यधिक प्रतिरोधी वायरस है. प्रतिरोधी वायरस इसका मतलब ये है कि काफी कोई भी अगर वेदर की कंडीशन है, हवामान की जो परिस्थितियां होती है, काफी ह्यूमिडिटी होती है, काफी गर्मी होती है, उस मौसम में भी ये जो वायरस है ये जिंदा होता है. और 120 दिन तक, दिन से ज्यादा भी जो संक्रमित पेशियां होती है, उस पेशियों में जो शरीर की जो पेशियां होती है ना, उस पेशियों में ये जो वायरस होता है, ये वायरस जीवंत रहता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पशु का अगर अच्छे तरीके से हम लोग मैनेजमेंट नहीं करते, व्यवस्थापन नहीं करते हैं, पशु की देखभाल अगर अच्छे से नहीं करते हैं, तो ये पशु में जो वायरस कई जगह जीवंत होने के चांसेस, संभावनाएं अधिक होती है. तो खेडूत भाइयों, आ जो वायरस છે તમે ચિંતા કરવાની વાત નહીં. એનો જો મળ છે, એનો જો મૂત્ર છે, પેશાબ છે, એમાં તમે જોવા ન મળે. અને આ અત્યંત પ્રતિરોધક વાયરસ છે. આ પણ કોઈ પણ મોસમમાં આ જીવંત રહી શકે છે. અને તમે જો કે ભાઈ પશુનો જો શરીર છે, એમાં જો પેશી છે, નાનું પેશી છે, આ પેશીમાં પણ 120 દિવસ સુધી આ પણ જો વાયરસ છે, આ જો વિષાણુ છે, આ જીવંત રહે છે. તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે જ્યારે પશુની તમે સારવાર કરો, આ સારવાર કર્યા પછી પણ તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં 2, 3, 4 મહિના સુધી તમે એના ઉપર ધ્યાન રખવું છે, એનો કાળજી લેવું बहुत जरूरी है लंपी स्किन डिसीज में. अब किसान भाइयों, लंपी स्किन जो डिसीज होता है, ये हम लोगों ने इसकी काफी थोड़ी माहिती तो हमने ली है, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि ये बीमारी में कौन से किस तरीके के पशु अत्यंत प्रभावित होते हैं, कौन से पशु का हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए. इसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा से ज्यादा सभी उम्र के पशु, इसमें जो गाय और भैंस वर्ग के जो पशु है, इसमें बीमार हो सकते हैं. लेकिन इसमें छोटे जो पशु होते हैं, उसमें उन पशुओं की बीमार होने की संभावना अधिक है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि छोटे पशुओं में निमोनिया नाम की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है. और जो दूध देने वाला पशु है, दूध देने वाले पशु में सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है. और जो गाय और भैंस की तुलना में अगर कोई विदेशी जानवर है, विदेशी जानवर में आप देखोगे कि रोग प्रतिकारक क्षमता है जो देशी जानवर के मुकाबले वो काफी कम होती है. तो विदेशी जानवर में यह बीमारी फैलने की जो संभावना है वो काफी अधिक होती है. और आपको पता होगा कि कई क्षेत्र में कभी कभी क्या होता है कि जो हरा घास कम होता है, खाने के लिए हम लोग कम देते हैं, या जानवर कुपोषित होता है, थोड़ा कमजोर जानवर होता है, उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है. तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी यह बीमारी लगने की जो संभावना है वो अधिक होती है. और इसके कारण क्या होगा कि जो कुपोषित जानवर होगा, कमजोर जानवर होगा, उसमें यह वायरस ज्यादा अटैक करेगा और जो बीमारी का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा समय तक आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा ये कुपोषित पशु में आपको देखने को मिलेगा. और बकरी जो भेड़ होती है, उसमें तो अभी तक तो ये लंपी स्किन डिसीज की जो बीमारी है वो नहीं देखी है. क्या खेडूत भाइयों, हाँ, તમે ખબર હોવું જોઈએ કે કયા પશુઓમાં અસરગ્રસ્ત થાય છે લંપી સ્કિન ડિસીઝ મારફત. તો નાના અને મોટા પશુ, આ બધા જો પશુ છે, ગાય અને ભેંસ પ્રજાતિના આ બધા પશુ જો છે આ બીમાર થઈ શકે છે. અને નાના પશુ છે
જો વધુ પ્રભાવિત થાય છે. એમાં જો નિમોનિયા નામની બીમારી છે આ પણ થઈ શકે છે. આની જો દૂધ આપતો જો પશુ છે આ પશુઓ તો વધારે એમાં પણ દૂધ ઉત્પન્ન ઘટી જાય, ઘટાડો તમે જોવા મળે છે. અને પછી આ જો પશુઓમાં પણ લંપી સ્કિન બીમારીનો જો ચિહ્નો છે આ તમે વધારે જોવા મળે છે. આની ગાય અને ભેંસની સરખામણીમાં જો વિદેશી જાતિના પશુ છે, વિદેશી જાતિ પશુને તમે ખબર છે કે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા ઓછું છે અને બીમાર હોવાની સંભાવના અધિક થાય છે એના કારણે. આની તમે જો કે ગામમાં કોઈ કુપોષિત પશુ છે, કોઈ નબળા પશુ છે, જેમાં પશુમાં રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા ઓછું છે, આ પશુમાં તમે લંપી સ્કિન ડિસીઝ નામની બીમારીનો થવાની જો સંભાવના છે આ વધારે છે. અને અત્યાર સુધી પણ ઘેટા અને બકરામાં આ રોગ જોવા મળ્યો નથી. अभी हम लोगों ने अगर देखेंगे कि पशु में इसका असर कैसे कैसे होता है। एक तो लंपी स्किन डिसीज में क्या होता है किसान भाइयों कि दूध उत्पादन में काफी कमी आ जाती है सीधा, क्योंकि इसका जो पशु का जो शरीर है उसके ऊपर काफी गांठियां आ जाती है, उसको उसको बुखार भी रहता है, तो दूध प्रोडक्शन जो है उत्पादन है वो उसमें तो कमी आने की संभावना अधिक होती है। चमड़ी का पूरा नुकसान हो जाता है। अगर आपका लाखों रुपए का अगर जानवर है, वो इतना अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है, लेकिन अगर आप देखोगे कुछ दिनों में इतना विकृत हो जाता है कि आप उसको देखने के बाद भी आप सोचोगे कि मेरा जानवर कैसे हो गया। तो नर पशुजन जो प्रजनन क्षमता है इसमें भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि वो वीकनेस आ जाता है, कमजोर हो जाता है पशु में बुखार हो जाता है, और इसका पशु का जो वजन होता है वजन भी काफी कम हो जाता है, कमजोर पशु हो जाता है, सुस्त हो जाता है। और गर्भावस्था जो रहती है, जो मादा पशु होती है, उसमें क्या होता है कभी कभी एबॉर्शन होते हैं, कभी कभी अगर समझ लीजिए मादा पशु में कोई अगर छोटा जो बछड़ा होता है वो यदि समझ लीजिए उसका जन्म हो जाता है तो उसमें कोई बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके के जो बीमारी है या प्रभाव है ये लंपी स्किन डिसीज में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। તો ખેડૂત ભાઈઓ આ બીમારીનો જો અસર છે આ પણ પશુઓમાં તમે જોવા મળે છે. એમાં તમે દૂધ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો છે, ચામડીનો સારું ચામડી છે એનું નુકસાન તમે જોવા મળે છે, નર પશુ પ્રજનન છે એના ક્ષમતા પણ તમે ઓછી જોવા મળે છે, એમાં ઘટાડો આવે છે. અને પશુનો જો શરીર છે એમાં વજનમાં પણ તમે ઘટાડો જોઈ શકાય, કમજોરી પણ તમે જોઈ શકાય, અને જો ગર્ભાવસ્થા છે અને અબોર્શન પણ તમે ગર્ભપાત આ પણ તમે જોઈ શકાય. પછી તમે કોઈ પણ નવા જન્મેલા જો નાના પશુ છે એમાં તમે જો કોઈ બીમારીનું લક્ષણ તમે જોઈ શકાય. તો આ તરહના જો અસર છે આ અસર लंपी स्किन डिसीज में तमें जोई शकाय। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लंपी स्किन डिसीज ये तो फैल रही है, लेकिन कैसे कैसे उसके चिन्ह होते हैं, रोग के संकेत कैसे है, किस तरीके से हम लोगों ने समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये लंपी स्किन डिसीज है करके। अगर आप देखोगे कि कोई भी वायरस जो पशु के शरीर में जाता है तो वो 4 से 14 दिन के बाद वो अपना क्या होता है कि बुखार जो आता है उसमें शुरू हो जाता है, और उसमें जो बुखार अगर देखोगे 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चले जाता है। तो इस जब बुखार से जानवर जो है कम से कम 1 से 3 दिन तक काफी उसमें बुखार दिखाई देता है। और अगर समझ लीजिए इसके साथ साथ और कोई बीमारी है, मिश्र तरीके का संसर्ग है, तो इसमें ज्यादा दिन तक वो बुखार आपको देखने को मिलता है। और जो लिम्फ नोड है, इसके जो लिम्फ नोड है, यहाँ ऐसे लिम्फ नोड होते हैं, यहाँ पे भी लिम्फ नोड होते हैं, ये पीछे भी लिम्फ नोड होते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड है ये काफी इसमें सूजन आ जाती है। और आगे के जो 2 पैर है, यहाँ देखिए 2 पैर है, ये 2 पैरों के बीच में जो है ना, जो ये जो भाग है यहाँ पे पानी भर जाता है कम पूरा। यहाँ अगर आप देखोगे नाक में से जो स्त्राव आ रहा है देखिए, और यहाँ आंखों में से भी पानी आ रहा है, और यहाँ जो है ना ये जो स्तन है इसका यहाँ पे भी काफी फोड़े हो चुकी है, जो गांठें हो चुकी है, गांठें फिर फूट जाती है, फिर उसमें पोपड़े बन जाते हैं। और कभी कभी तो ये जो मुंह होता है, नाक होता है, ये मुंह और नाक अगर आप ये मुंह को अगर खोल के देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ी जख्म हो जाती है, नाक में यहाँ पे अंदर में जख्म हो जाती है। तो इस तरीके से इसका जो फैलाव है ये काफी हद तक बढ़ता है। और ये जो शरीर है, शरीर में आप देखोगे तो पूरी गांठें हो जाती है। ये पीछे का भाग देखिए, यहाँ पे जानवर जो है ये लंगड़ रहा है, ये देखिए इसका जो चलने का स्टाइल है ये देखिए आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से सामने का जो पैर है यहाँ स्वेलिंग हुआ था, काफी सूजन हुई थी,
और इस सूजन के बाद देखिए इसका जो यहाँ का जो भाग है किस तरीके से बन चुका है, और यहाँ जो फोड़े हैं किस तरीके से तैयार होते हैं। तो ये सारा जो लक्षण है, ये जो रोग की ये संकेत है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो पशु है, इस पशुओं में जो लंपी स्किन नाम की जो डिसीज नाम की जो बीमारी है हो चुकी है। और इसमें क्या होता है कि जो सफेद रक्त पेशी होती है एक्चुअली, हालांकि जब इन्फेक्शन को भी बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, सफेद पेशी वो ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाती है और उसको इन्फेक्शन रोकने की कोशिश करती है। और इसमें दूसरी बात प्लेटलेट होती है। जो प्लेटलेट क्या होती है, कमजोरी जब हो जाती है उसमें प्लेटलेट कम होती है। तो पशु में क्या होता है, प्लेट सेल्स तो ज्यादा होती है, लेकिन ये वायरस जो बीमारी होने के कारण प्लेटलेट की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम लोग यदि पशु का अगर रक्त का कोई नमूना अगर लेते हैं, प्रयोगशाला में देते हैं, तो उसको इस तरीके से हम लोग चेक भी करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग निदान इसका कर सकते हैं। तो ખેડૂત ભાઈઓ, એનો જો ઇન્ક્યુબેશન સમયગાળો છે આ ચેપ પછી 4 અને 14 દિવસ છે, અને એનો જો તાવ છે, એનો જો તાપમાન છે, તાવ છે આ 103 થી 105 ડિગ્રી ફેરનહીટ સુધી જ આવે છે, અને 1 થી 3 દિવસ એનો તાવ તમે જોવા મળે છે। ક્યારે પરિસ્થિતિમાં તમે જો મિશ્ર ચેપ છે તો એમાં વધુ દિવસ તાપ જોવા મળે છે, અને 2 થી 5 સેન્ટીમીટર વ્યાસ આકારની શરીર પર ગાંઠે રહે છે। 2 થી 5 સેન્ટીમીટર તમે જો અહીંયા પણ ગાંઠે છે। તો જો લાળ ગ્રંથિ છે એમાં છે ને લિમ્ફ નોડ છે, પછી ગોદડીના જો સોજો છે એ જોવો તમે અહીંયા, પગમાં સોજો છે આ જોવો તમે અહીંયા પગમાં સોજો, પછી તમે આ જો લંગડવાના ચિહ્નો છે આ તમે જો પશુ કેવી રીતે ચાલી રહ્યા છે, જો તમે અહીંયા તમે જોઈ શકાય। અહીંયા તમે જો આવનો સોજો છે અહીંયા, પછી એના ઉપર પણ તમે ફોડો જોઈ શકાય, ગાંઠિયા જોઈ શકાય। પછી આચળ છે અને મોઢા છે, અહીંયા તમે જો મોઢામાં પણ ક્યારે તમે જખમ જોઈ શકાય, નાકમાં પણ તમે જોઈ શકાય, અહીંયા મોઢામાં પણ જખમ થઈ શકે છે, અને ત્વચા ઉપર તો જખમ તો છે જ। જ્યારે ગાંઠી ફૂટી જાય તો અહીંયા પણ તમે જખમ જોઈ શકાય। અને આ પરિસ્થિતિમાં શું થાય કે જો પશુ છે આ પશુ ઓછી ખોરાક લેવે છે અને થકેલા લાગે છે પશુ, પછી અને લોહીના જો સફેદ પેશી છે અને પ્લેટલેટની જો સંખ્યા છે અંદરમાં જો લોહીમાં આ ઓછું થઈ જાય છે। એનો જો તમે કોઈ નમૂના તમે લો અને પશુ ચિકિત્સક માધ્યમથી તમે પ્રયોગશાળાને મોકલો તો તમે આ जो रिपोर्ट છે આ તમે જોવા મળે છે। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पशु के शरीर पे काफी गांठियां आ जाती है, और ये त्वचा की जो गांठें है तो हम लोग देखते हैं कभी ज्यादा गांठें देखने को मिलती है, कम गांठें देखने को मिलती है, कभी ज्यादा ताव देखने को मिलता है, कभी ताव थोड़ा कम होता है, कभी पशु लंगड़ता है, कभी लार टपकती है, आंखों में से पानी आ जाता है। तो इस तरीके के जो संकेत होते हैं, इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं हम लोग देखते हैं। अभी इसमें भी संक्रमण जो होता है, कैसा संक्रमण होता है, हल्का होता है, मीडियम होता है, ज्यादा होता है, वो हम अभी देखेंगे। अभी इसको क्या कहते हैं कि बहुत ही हल्का संक्रमण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बुखार के बिना त्वचा की जो गांठें देखने को मिलती है, आपको देखो यहाँ पे त्वचा की जो गांठें है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गांठें है यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगी ये। और इस पशु में भी आप देखिए कि इसमें भी छोटी छोटी गांठें है। इसमें ताव तो लगता नहीं है, लेकिन देखिए गांठें पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा बढ़ चुकी नहीं है। तो ये पहली स्टेज है। इसमें अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि भाई नहीं, पशु में अगर गांठें आई है तो हम लोगों को तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह हम लोगों को लेना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए। ખેડૂત ભાઈઓ, જો ખૂબ જ હળવો ચેપ છે તમે જોઈ શકાય, તાવ વિના માત્ર પણ ત્વચાની ગાંઠો તમે જોઈ શકાય। અહીંયા તમે જો ઓછું ગાંઠો છે, પછી તમે જો તો ત્યારે તમે પશુ ચિકિત્સકની મદદ લેવી શકાય। अभी दूसरी स्टेज ऐसी है किसान भाइयों, जिसको हम कहते हैं कि हल्का संक्रमण थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, पहले हमने देखा कि बुखार थोड़ा नहीं है लेकिन गांठें है। अब इसमें बुखार है, आप देखिए इसमें थोड़ा बुखार लग रहा है, देखो आंखों में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी बह रहा है, जानवर भी थका हुआ लग रहा है। त्वचा की गांठें आप देखिए, यहाँ गांठें दिख रही है, थोड़ा बुखार लग रहा है इसमें। इस पशु में भी आप देखिए, और इसमें भी आप देखिए, इसमें भी थोड़ा सा गांठें आ चुकी है, और यहाँ पे भी कमजोर पशु दिख रहा है। तो इसको हम लोग जो कहते हैं हल्का संक्रमण, लंपी स्किन डिसीज का हम लोग इसके कह सकते हैं। तो ये उसके बाद की स्टेज है। तो इसमें भी हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, नजीक से पशु चिकित्सक को मदद हम ले सकते हैं।
તો ખેડૂત ભાઈઓ એનો હળવો ચેપ કહેવામાં આવે છે. એના તાવ સાચી ત્વચાનો જો ગાંઠો છે આ તમે જોઈ શકાય. અહીંયા જુઓ તમે, અહીંયા તાવ લાગે છે. પશુને આંખોમાંથી પણ સ્રાવ તમે જોઈ શકાય, નાકમાંથી સ્રાવ જોઈ શકાય. અહીંયા તમે જો, અહીંયા પણ તાવ લાગે છે. तो एवी रीते तमे एनो जो चिन्ह थे तमे जोई शकाय. भाइयों, जो तीसरा जो प्रकार है उसको मध्यम संक्रमण हम लोग कहते हैं. इसमें क्या होता है, बुखार तो है, आप देखिए बुखार ज्यादा है, इसमें बुखार तो है ही, लेकिन पशु भी नीचे बैठा हुआ है और त्वचा की जो गांठें है ये बढ़ चुकी है. देखिए त्वचा की गांठें ऊपर निकल, पहले तो गांठें अंदर थी, अब गांठें बाहर निकल चुकी है, देखिए आप. और लेकिन जब हम उपचार करते हैं किसी पशु चिकित्सक के माध्यम से, तो ये पशु चिकित्सक के उपचार को भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि स्टेज काफी दूर तक निकल चुका है, पीरियड काफी दूर तक निकल चुका है. इसलिए कोई भी परिस्थिति में जब भी कोई वायरल बीमारी होती है, तो अगर हम शुरू से अगर कोई भी पशु का अगर समझ लीजिए उसकी देखभाल करते हैं, तो अच्छी तरीके से हम लोग उस पशु का निदान भी कर सकते हैं, उस पशु का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और पशु को अच्छा भी कर सकते हैं. तो खेडूत भाइयों, તમે અહીંયા જો મધ્યમ આ ચેપ છે એમાં તમે પશુ જો નીચે બેઠેલા છે પશુ, અને તાવનો સાથે એમાં તાવ પણ જોઈ શકાય તમે. એમાં જો તમે એને જો આંખો છે, આંખોમાંથી પાણી આવી રહ્યા છે, એનો કોઈ સારવાર થઈ ગયું હતું, પરંતુ એના પણ કોઈ પ્રતિસાદ આ જાનવર આ પશુ આપતા નથી, આ પણ તમે જોઈ શકાય. તો આ જો પરિસ્થિતિ છે, આ પરિસ્થિતિ મધ્યમ ચેપની પરિસ્થિતિ તમે જોઈ શકાય. તો આ પરિસ્થિતિમાં પણ તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પશુ ચિकित्सकની મદદ તમે લેવું જોઈએ. किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग गांठे देखते हैं, बुखार देखते हैं, ये लार टपकती हुई देख रहे हैं, आंखों में से पानी भी आ रहा है और सामने के दो पैरों में ये सूजन है, पानी भरा हुआ है. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ उपचार का कोई जवाब ही नहीं मिलता. कितना भी पशु चिकित्सक उसको उपचार दे रहा है, यहाँ पे इडीमा तैयार हो चुका है, लार निकल रही है. ऐसे पशु में जो छोटे पशु होते हैं, इसमें क्या होता है कि लंग जो होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, इसका दाह तैयार होता है, इसका इन्फ्लेमेशन तैयार होता है और निमोनिया नाम की बीमारी इसमें तैयार होती है. अधिकतर छोटे जो पशु होते हैं ना, ये पशु उसमें बीमारी में उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है. तो कोई पण परिस्थिति में जब भी आपको अगर ये ऐसे पशु के अगर लक्षण दिखाई देते हैं, गंभीर संक्रमण दिखाई देते हैं, तो हम लोगों ने पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए. जो भी उपचार है वो उपचार हम लोगों ने करना बहुत जरूरी है. तो ખેડૂત ભાઈઓ, તમે અહીંયા જો જો બીમાર પશુ છે, રોગી પશુના જો આગળનો જો બે પાવ છે, એમાં જો ગોદડી છે, એમાં તમે જો અહીંયા સોજો છે, અને અહીંયા હળી જો તમે જોવા મળે છે, એમાં પાણી છે. તો અહીંયા તમે જો આ જો પશુ છે, આ પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જો પશુ ચિકિત્સકની સારવાર છે એમાં કોઈ પ્રતિસાદ આપતા નથી. અને જો નાના પશુ છે, આ નાના પશુમાં પણ તમે આ નિમોનિયા પણ બીમારી થઈ શકે છે. આ તો ગંભીર ચેપ છે અને પશુ ચિકિત્સક હોવાની નાતે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે પશુની ઉપર એનો દેખભાલ કરવું જોઈએ, એની કાળજી લેવું જોઈએ, નજીકની પશુ ચિકિત્સકની તમે મદદ લેવું જોઈએ, આ તમે કરવું જોઈએ. किसान भाइयों, हम लोगों ने देखा कि लंपी स्किन डिसीज में जो पशु के शरीर की जो गांठें होती है, इसकी जो बीमारी होती है, तो ये कैसे फैलती है, इसके लिए क्या जवाबदार होते हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं. लेकिन कभी कभी किसान भाई ये भी पूछते हैं कि साहब, जो बीमारी होती है कितने दिन में ठीक हो जाएगी, पशु सामान्य कितने दिन में हो जाएगा, पशु का जो दूध उत्पादन कितने दिन में ठीक ठाक आ जाएगा पहले जैसा. तो इसको कम से कम ये बीमारी को ठीक होने के लिए कम से कम 2 से 3 सप्ताह का अवधि लगता है. जैसे हम लोग समझ लीजिए 21 दिन हो गया, 1 महीना भी इसमें लग सकता है. कभी कभी तो पशु इतना बीमार हो जाता है, उसकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है. कभी कभी क्या हो जाता है कि पशु अगर कमजोर हो जाए, उसमें सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है, जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या और कोई इन्फेक्शन है या कोई समझ लीजिए परजीवी मार्फत कोई अगर इन्फेक्शन है, ये भी जो संसर्गजन्य जो कोई बीमारी अगर होती है, तो उसमें भी पशु के बीमार होने के जो संभावनाएं अधिक बढ़ती है. तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि पशु की सामान्य होने के लिए जो टाइम लगेगा, अवधि लगेगी, वो ज्यादा लगेगी. तो कोई भी परिस्थिति में लंपी स्किन बीमारी में, डिसीज की बीमारी में आपको पशु की देखभाल अच्छी करनी है, उसकी काळजी आपको अच्छी लेनी है और जो भी है उसका चारा, दाना, पानी, उसकी रोज उसकी देखभाल ये आपको करना बहुत जरूरी है.
તો ખેડૂત ભાઈઓ ક્યારે પણ કોઈ ખેડૂત ભાઈ પૂછે કે ભાઈ સાહેબ પશુ સામાન્ય થવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે છે અને એનો જો પશુનો દૂધ ઉત્પાદન છે આ કેવી રીતે પૂર્વવત આવી જાય, તો એમાં 21 થી 30 દિવસ, 1 મહિના તો લાગે જ છે. પછી કોઈ બીજું કોઈ સંસર્ગ યા ચેપી કોઈ બીમારી આવી જાય એમાં પણ ટાઈમ વધુ લાગી શકાય. પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે એનું સારું રીતે દેખભાલ કરો, સારું રીતે એની કાળજી લેવો, તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે લંપી સ્કિન ડિસીઝના વિરુદ્ધ આ પશુઓનું તમે રક્ષણ કરી શકાય. अभी किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग पशु पालते हैं, पशु रखते हैं, तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी होती है, लंपी स्किन की जो बीमारी होती है, ये कब होती है, कैसे होती है, किस मौसम में होती है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे उच्च तापमान होता है, काफी गर्म तापमान है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, हवा में आर्द्रता काफी है, तो ऐसे मौसम में यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। या तो जैसे यहाँ कोई तालाब है, नदी है, या जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, ऐसे जगह में भी ये बीमारी होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। और जिस प्रदेश में अगर आप देखोगे जहाँ गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, या सितंबर नवंबर के दौरान भी इसका प्रकोप देखा गया है, क्योंकि मौसम जब बदलता है और एक ह्यूमिडिटी आर्द्रता हवा में तैयार हो जाती है, तो पशु के ऊपर जो एक स्ट्रेस आ जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में भी यह बीमारी फैलने की संभावनाएं अधिक होती है। और जहाँ पे काफी सूखा प्रदेश है, जैसे कच्छ है, राजस्थान का प्रदेश है, ऐसे प्रदेशों में, या जहाँ पे कुछ ग्रीन नहीं है, तो ऐसे भी यहाँ पे जहाँ पे आप देखोगे कि लंपी स्किन डिसीज की जो बीमारी है अभी के समय में काफी फैल चुकी है। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों ने कोई पण जो जानवर है उनकी आपको देखभाल करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से रखना चाहिए, मौसम का ध्यान रखना चाहिए। मौसम जब बदलता है तब आपको ध्यान रखना है। और गाय हो गया, भैंस हो गया, या जानवर को कब किस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्थापन करे, इस तरीके की हम लोगों को सोचना चाहिए। તો ખેડૂત ભાઈઓ, લંપી રોગ કયા જગા અને કયા ઋતુ દરમિયાન થાય છે, આ પણ પ્રશ્ન ક્યારે ખેડૂત પૂછે છે કે ભાઈ તમે ખબર છે કે જો ઉચ્ચ તાપમાન છે અને ઉચ્ચ ભેજવાળો જે વિસ્તાર છે, અહીંયા તમે આ બીમારી जो છે, રોગ છે, આ વધુ પ્રમાણમાં તમે જોઈ શકાય। અને ખાસ કરીને જો નીચાણવાળા વિસ્તારો છે અથવા નજીકના જલાશયોનો પાસે જો ભાગ છે, આ ગામોમાં પણ આ બીમારી થઈ શકે છે। અને જો ભીના ઉનાળો છે અને મધ્ય સપ્ટેમ્બર થી મધ્ય નવેમ્બરની દરમિયાન અહીંયા શું થાય કે જાનવરની ઉપર સ્ટ્રેસ આવી જાય, મૌસમ બદલી જાય, તો આ પીરિયડ દરમિયાન પણ તમે જો તો આ લંપી સ્કિન ડિસીઝ નામની જો બીમારી છે આ પણ પશુઓમાં થઈ શકે છે। અને જો સૂકી ઋતુ દરમિયાન જો છે, જો કોઈ ડ્રાય મૌસમ છે, તો અહીંયા આ ઋતુમાં પણ આ બીમારી થઈ શકે છે। તો અહીંયા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે ઋતુના તમે ધ્યાન રાખો, મૌસમમાં ધ્યાન રાખો, આજુબાજુના જો વિસ્તારો છે આ ક્ષેત્રનું તમે ધ્યાન રાખશો અને એવી રીતે તમે તમારી પશુની તમે કાળજી લો, તમે એને દેખભાલ કરો, તો તમે સારું રીતે આ લંપી સ્કિન जो डिसीज છે એનો जो વિરુદ્ધ છે તમે તમારું जानवर તમે તૈયાર કરી શકાય। अब किसान भाइयों, हमको ये भी देखना चाहिए कि प्रकोप के क्या क्या कारण होते हैं, किस तरीके से आउटब्रेक फैलता है, किस तरीके से अधिक मात्रा में जो जानवर है वो बीमार हो जाते हैं। तो पहले तो ये होता था कि जैसे 2019 में ये बीमारी आई तो छोटी छोटी इसमें ये बीमारी कुछ कुछ जानवरों में होती थी, लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ते गया तो काफी ये बीमारी अधिक मात्रा में ये फैलती गई और काफी क्षेत्र में, प्रक्षेत्र में ये बीमारी फैलती गई। इसमें फिर अभी तो देखोगे आप राज्यों में भी बीमारी फैल रही है, कुछ जिलों में बीमारी फैल रही है। लेकिन ये इस पर निर्भर होता है कि जहाँ पे परजीवी का आबादी ज्यादा होती है, जैसे समझ लीजिए मच्छर ज्यादा है, उसके बाद कीड़े ज्यादा है, उसके बाद किलनी ज्यादा है, या गोचीड़ ज्यादा है, जो भी परजीवी है बाहर से जो आते हैं या माइग्रेट करते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, वो पशु के शरीर पे बैठते हैं, काटते हैं, वहां का खून चूसते हैं और उसके माध्यम से बीमारी फैल जाती है। जानवर की हरकत आप देखते होंगे, कोई जानवर समझ लीजिए बाहर घूमने निकलता है, या समझ लीजिए बाहर से जानवर हम लोग अंदर हमारे गांव में बिकट लाते हैं, तो ये जो है इसके माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। कभी कभी क्या होती है कि रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो काफी कम होती है और एक पशु एक दूसरे के जो कांटेक्ट में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, उसके माध्यम से बीमारी फैलने के काफी
संभावनाएं अधिक होती है। कभी कभी हवा होती है, आप देखोगे हवा एक गांव से दूसरे गांव तक चलती है, एक दिशा से दूसरी दिशा तक चलती है। तो एक गांव से दूसरे गांव में जो हवा है एक दिशा से दूसरी दिशा में चलते समय, तो क्या होता है कि अगर कोई वायरस है वो वायरस वो ट्रांसमिट करती है। अगर आप देखोगे कोई अगर जो परजीवी है जो माइग्रेट होते हैं, मच्छर होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में भी आते हैं, 5 किलोमीटर के अगर आप एरिया देखोगे, इसलिए कोई भी परिस्थिति में जब वैक्सीनेशन करते हैं, रस्सीकरण करते हैं, तो उसमें यह जो बीमारी के जो वैक्सीनेशन करते हैं ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर के एरिया में करना, क्योंकि हवा का जो प्रकोप होता है, हवा का जो प्रभाव होता है वो कम से कम 3-4 किलोमीटर तक देखा जाता है। और कभी कभी वर्षा का पैटर्न भी होता है। वर्षा का पैटर्न यानी क्या होता है कि जो जहाँ पे वर्षा कभी भी आ जाती है तो वहां का मौसम पूरा बदल जाता है। मौसम बदलने से क्या होता है, कम से कम जानवर में स्ट्रेस आ जाता है, और इसके कारण भी जो बीमारी है, अगर ऑलरेडी अगर कोई वायरस संक्रमित हुआ है तो उसके माध्यम से भी जानवरों में वो बीमारी शरीर के अंदर पनपने लगती है। तो ખેડૂત ભાઈઓ આ આપણ જો આપણ જરૂરી છે કે ફાટી નીકળવાનું જો કારણ છે શું છે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ફાટી નીકળવો પ્રકૃતિમાં છૂટા છવાયા છે, નાનું નાનું તમે કેसेस જોવા મળે છે। અત્યારે તમે જો તો એક એક જિલ્લામાં તમે કેसेस જોવી શકાય, પછી તમે રાજ્યમાં કેसेस જોવી રહ્યા છે। આની ફાટી જો નીકળવો વેક્ટરની વસ્તી ઉપર આધાર રાખે છે, પણ પરજીવી છે એનો જે માખી છે, પછી ટીક્સ છે, આ જેટલા પરજીવી છે એનો પોપ્યુલેશન કેટલા છે, એની સંખ્યા કેટલી છે, તમે સાફ સફાઈ કરતું નથી, આ પછી એમાં જો પ્રદૂષણ ક્લીનલીનેસ નથી, સ્વચ્છતા નથી, તો એ આ પરિસ્થિતિમાં પણ આ બીમારી થવાની શક્યતા વધારે છે। અને પશુને જો હિલચાલ છે, એક ગામથી દૂસરે ગામથી પશુ તમે લાવી રહ્યા છે, માર્કેટિંગ માટે તમે બહાર ગામ લઈ જવાનું છે, પશુ તમારા કમજોર છે, એનો રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા ઓછી છે, પવન છે એક દિશાથી બીજું દિશામાં પવન આવે છે, આ મારફત પણ આ બીમારીનો જો વાયરસ છે અહીંયા પણ આવી શકાય। અને વરસાદનો જો પેટર્ન છે, ક્યારે ક્યારે વરસાદ થઈ જાય, ક્યારે તમે જો કે ભાઈ તમે સૂર્યપ્રકાશ જોવા મળે છે, તો આ રીતિના જો મૌસમ છે દરેક સમય આ બદલે તો આ પરિસ્થિતિમાં પણ આ જો વિષાણુ છે એનો જો પ્રભાવ છે આ પશુના શરીર પર પડે છે અને પશુ લંપી સ્કિન ડિસીઝ અને રોગથી બીમાર થવાની શક્યતા વધારે છે। अभी किसान भाइयों, हमको ये देखना है कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या होती है, क्योंकि लंपी स्किन डिसीज जो होती है उसमें अगर एक बार अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि ये बीमारी के कारण यानी उसमें क्या एक वायरस उसमें गया, वायरस के कारण क्यों जो है उसने एंटीबॉडीज तैयार कर लिया, और जो प्रतिरक्षा है जो उसने काफी उसमें तैयार हो जाती है और एक आजीवन ये चलती है। एक बार अगर हो जाए इसमें बीमारी तो उसमें बाद में लंपी स्किन डिसीज नाम की होने की संभावनाएं काफी कम होती है। तो ये इसको जो कुदरती प्रतिरक्षा कहते हैं कि भाई अगर कोई क्यारे कोई खेडूत भाइयों कोई पण जानवर आ लंपी स्किन डिसीज नामથી બીમારીથી બીમાર થઈ જાય, રોગી થઈ જાય, તો શું થાય, આ જો વાયરસ છે એના કારણ એના શરીરમાં એક તરહની આજીવન પ્રતિરક્ષા વિકસિત થાય છે અને એના કારણે શું થાય કે બીજું વાર આ જે પણ બીમારી છે આ થવાની શક્યતા ઓછી છે। પણ તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બીજું જો બીમારી છે આ बीमारीનો વિરુદ્ધ તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એને देखभाल કરવું बहुत जरूरी है। इसके बाद किसान भाइयों हमको ये भी देखना है कि जो प्रतिरक्षा गायों के जो बछड़े होते हैं जिसमें मातृ एंटीबॉडी जो प्राप्त होती है उसमें 6 महीने तक उम्र की प्रतिरक्षा बनाए रखते हैं, क्योंकि छोटे जो बछड़े होते हैं ये बछड़े क्या करते हैं कि अपने माँ से जो इनको जो दूध पीते हैं उसके कारण इनमें एक तरह की जो 6 महीने तक एक इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता होती है। कोई भी अगर वायरस या जीवाणु से कोई अटैक होता है तो उससे फाइट करने की क्षमता होती है, उससे लड़ने की क्षमता इसमें तैयार हो जाती है। लेकिन अगर समझ लीजिए हमने कोई संक्रमित गाय है उसको हम लोगों ने कोई टीका अगर लगाया है, उसको रस्सीकरण किया है, तो आप लोगों को कोई भी परिस्थिति में ये जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं इसको टीका लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई अगर गाय या भैंस कोई अगर काफी हद तक बीमार है, अति संवेदनशील गाय भैंस बीमार है या वो गर्भवती है, लेकिन उसका जो बछड़ा जब निकल जाता है अंदर से जब डिलीवरी होने के बाद, तो
जो बछड़ों में हम लोगों ने वो जो लस है रसीकरण उसका करना बहुत जरूरी है। तो उसका टीका हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाए कि कम से कम जो जो बीमारी के संकेत है आपको भविष्य में वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ખેડૂત ભાઈઓ આ રોગ પ્રતિકારક જો ગાયના જો વાછડા છે માતૃત્વની જો એન્ટીબોડીઝ તમે મળવે છે નાના પશુમાં આ 6 મહિના સુધી આ કામ કરે છે અને એના કારણે શું થાય કે તમે 6 મહિના સુધી તમે લંપી સ્કિન ડિસીઝ વિરુદ્ધ કોઈ પણ રસી મોકલવાની કાંઈ જરૂરત નથી પરંતુ કોઈ સમજ કોઈ ક્યારે કોઈ સંક્રમિત ગાય છે અને એમાં કોઈ વિષાણુ મારફત લંપી સ્કિન ડિસીઝ આવે છે અને એના જો છે 6 માસથી ઓછું જો બછડા છે નાનું વાછરડા છે એમાં તમે રસી મોકલવાની કોઈ જરૂરત નથી કારણ કે જો માતૃ એન્ટીબોડી છે એનો માતૃત્વથી જો રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા આવે છે એમાં તમે છેડછાડ કરવાની કઈ શક્યતા નહીં પરંતુ તમે કોઈ ગાય છે આ ગર્ભવતી ગાય છે એમાં શું થાય ડિલિવરી પછી જો નાના બછડા છે વાછરડાઓ છે એમાં તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પશુ ચિકિત્સક દ્વારા તમે રસી મોકલવાનું બહુ જરૂરી છે તો એવી રીતે તમે નાનું પશુ છે એનું કાળજી લેવું જરૂરી છે। अब किसान भाइयों हम लोगों को ये भी देखना है कि रोगों का निदान कैसे करना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये पशु को तो हम लोग देखते हैं गांठिया है शरीर के ऊपर और कभी कभी ये फोड़े हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पशु को नजीक के पशु चिकित्सालय लेके जाते हैं और जो ब्लड सैंपल होता है खून का एक सैंपल होता है वो हम ले सकते हैं। वो जो फोड़े होती है फूट जाते हैं वहां से हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। आरटीपीसीआर जो होता है आरटीपीसीआर से के माध्यम से भी इस बीमारी का जो डायग्नोसिस है निदान है वो किया जा सकता है। और जो उच्च बुखार होता है काफ़ी बुखार ज़्यादा देर काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और दवा को भी रिएक्ट नहीं करता है जो भी रिस्पॉन्स देना चाहिए जानवर वो नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो दूसरी बीमारी होती है हेमोप्रोटोजन्स होते हैं तो उसमें भी उसकी टेस्ट भी हम लोगों ने करवा लेना चाहिए ताकि क्या हो जाता है कि सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो भी हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ખેડૂત ભાઈઓ તમે આ ખબર હોવું જોઈએ કે જો પશુ છે લંપી સ્કિન ડિસીઝ આ બીમારીમાં આ કેવી રીતે તમે એનો નિદાન કરવું જોઈએ। ત્વચામાંથી તમે પશુ ચિકિત્સકની માધ્યમથી તમે આ જો બીમાર જાનવર છે રોગી જાનવર છે એમાં શરીરમાંથી તમે એના મારફત બ્લડ સેમ્પલ લેવી શકાય। આ જો ફોડા છે ગાંઠિયો છે પછી તમે અહીંયાથી સેમ્પલ લેવામાં આવે છે અને એને આરટીપીસીઆર તરીકે એક ટેસ્ટ છે ટેકનોલોજી છે એના માધ્યમથી પણ આ બીમારીનો નિદાન થઈ શકે છે। આની શું થાય ક્યારે ક્યારે તમે જો કે કોઈ પણ ક્યારે પશુ જો છે બીમાર પશુ આ પશુ ચિકિત્સકની સારવારનું રિસ્પોન્સ કરતું નથી તો એમાં શું થાય કે સેકન્ડરી જો ઇન્ફેક્શન છે બીજું કોઈ ઇન્ફેક્શન છે બીજું કોઈ ચેપી રોગ છે આ પણ થવાની શક્યતા વધારે છે। પણ આ પરિસ્થિતિમાં પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે બ્લડ જો છે લોહી છે એનું પરીક્ષણ કરવાની બહુ જરૂરિયાત છે। નજીકના જો પશુ अस्पताल છે કોઈ લેબ છે એમાં તમે पशु चिकित्सक की मदद लेवी शकाय। किसान भाइयों इसका जो इलाज है हमारे कभी कभी किसान भाई पूछते हैं कि भाई साहब इसका इलाज क्या होता है कि लंपी का आज तक तो कोई ऐसा कोई इलाज तो नहीं है जो स्पेसिफिक इस पे ट्रीटमेंट कर सके लेकिन किसान भाइयों जो लक्षणात्मक इलाज है जो इसको बुखार आता है उसके लिए ट्रीटमेंट उसके बाद उठते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग मलहम लगाते हैं साफ सफाई होती है पशु की शरीर की इसके माध्यम से हम लोग इस पे उपचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर अच्छे से देखभाल करेंगे तो हमारा पशु काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त हो सकेगा। तो ખેડૂત ભાઈઓ સારવાર બાબત તમે કહેવાનું છે કે ભાઈ લંપી સ્કિન રોગ માટે કોઈ ચોક્કસ સારવાર નથી પરંતુ લાક્ષણિક સારવાર જે પશુ ચિકિત્સક કરે છે એમાં તાવ આવે એના તાવની ઉપર સારવાર એન્ટીબાયોટિક્સ પછી એના જો ફોડા છે એના એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ આવે છે પછી તમે કોઈ પણ ઘાવ છે જખમ છે એના ઉપર તમે મલમ જખમ છે એના ઉપર તમે
કોઈ એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ જે આ તમે લગાવી શકાય. એવી રીતે તમે જે પણ પશુ ચિકિત્સકને છે એના માર્ગદર્શન પર તમે સારવાર કરી શકાય. दूसरी बात है कि जो पशु का, किसान भाइयों, पशु का जो मुंह होता है, यहाँ से नाक, शरीर, ये घाव होते हैं छोटे 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 छोटे, यहाँ पे जख्म हो जाती है, यहाँ पे पोपड़े निकलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं. तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि पशु, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल होता है उसका द्रावण अगर हम तैयार करते हैं पानी में के साथ, तो उसको माध्यम से भी हम लोगों ने इसको धो सकते हैं. और इस घाव पे अगर समझ लो हम लोग एंटीसेप्टिक अगर क्रीम या हल्दी में थोड़ा तेल वगैरह घोलकर या घी उसमें मिलाकर हम लोग भी इस तरीके से इसको लगा सकते हैं. इसके माध्यम से भी जो घाव होते हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होने में काफ़ी मदद मिल जाती है. तो ખેડૂત ભાઈઓ, શું થાય કે આ જો પશુના જો શરીર છે એમાં જો ગાંઠો છે, પોપડી છે, તમે જો નાકની ઉપર, મોઢાની ઉપર, પછી શરીરની ઉપર, આવોની ઉપર, બાવલાની ઉપર, તો આ તમે શું કરવાનું છે કે પોટેશિયમ પરમેંગનેટનું દ્રાવણ તમે તૈયાર કરી શકાય અને એના દ્વારા તમે સાફ કરી શકાય. સાફ કર્યા પછી તમે એન્ટીસેપ્ટિક જો ક્રીમ છે આ તમે લગાવવું પડે. નહીં તો ઘરમાં હળદર આવે છે, તેલમાં એને મિશ્રણ કરીને એના ઘીને સાથે મિશ્રણ કરીને તમે પણ લગાવી શકાય. એમાં શું થાય કે આ જો જખમ છે આ મુલાયમ થઈ શકે છે. પછી હળદર છે, એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ છે, આ પણ આ જો જખમ છે આ ભરવા માટે બહુ મદદ મળે છે. भाइयों, जो ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिसीज नाम की जो बीमारी, इसमें काफ़ी चुनौतियां है. ऐसा नहीं है कि लंपी स्किन डिसीज की बीमारी है तो ये होने के बाद अगर पशु हमारा दुरुस्त हो जाता है तो हमें निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है कि दूसरे जो जीवाणु होते हैं उसके जो संक्रमण होते हैं उसकी संभावनाएं अधिक होती है. और दूसरे जो संक्रमण होते हैं उसको रोकना या नियंत्रण करना ये पशुपालक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है. और सबसे बड़ी बात है कि पशु को दुरुस्त होने में, पूर्ण रीति से सामान्य होने में भी काफी 6-6 महीने का टाइम लगता है. तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो पशु अगर ये हो जाए, दुरुस्त हो जाए, इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता हम लोगों को बढ़ाना चाहिए. इसको अच्छा हम लोगों ने दाना पानी देना चाहिए. इसको अच्छे से साफ सुथरा हम लोगों ने रखना चाहिए. अगल बगल का जो क्षेत्र है उसको साफ सफाई रखना चाहिए. तो इससे क्या हो जाएगा कि उसको सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो जीवाणु संक्रमण होने की जो संभावना है वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो ખેડૂત ભાઈઓ, એમાં વધારે પડકારો છે લંપી સ્કિન ડિસીઝમાં. એવી નથી કે ભાઈ લંપી સ્કિન ડિસીઝ થયું અને તમારું જો પશુ છે આ સામાન્ય થયું એના પછી એમનો કાંઈ ન થાય. એમાં શું થાય કે એનો બીજું ઇન્ફેક્શન થવાની જો સંભાવના એ વધારે છે. આ પણ તમે રોકવું જોઈએ. અને જો નિયંત્રણ તમે કરી શકાય બીજું ઇન્ફેક્શનમાં, બીજું ચેપી રોગમાં, તો તમે આ પશુ છે સારી રીતે તમે તૈયાર કરી શકાય. એનો જો દૂધ ઉત્પાદન છે એ તમે પૂર્વવત પણ લાવી શકાય. અને ક્યારે ક્યારે સમય તો પશુ સારું રીતે પૂર્વ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં આવવા માટે તમે 6 મહિના સુધી પણ સમય લાગે છે. તો પણ આ પરિસ્થિતિમાં તમે પશુ ચિકિત્સકની મદદ લેવી જોઈએ. નજીકનો जो ક્ષેત્ર છે આ તમે સાફ સફાઈ રખવું જોઈએ. એવી રીતે તમે કામ કરવું જોઈએ. भाइयों, हमारा जो विषय था सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि लंपी स्किन डिसीज के नियंत्रण में लोक सहभाग का क्या जरूरत है, लोक सहभाग कैसे होना चाहिए, ये बहुत जरूरत है. क्योंकि ये जो बीमारी होती है एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है. कभी कभी ये जो बीमारी होती है पूरे गांव में फैलती है. और दूसरी बात होती है कि अगर गांव में जो काफी ज्यादा में पशु होते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में भी पशु की बीमारी आ जाती है, तो अगर हम लोग सारे गांव के जो लोग होते हैं, सारे गांव के पशुपालक होते हैं, गांव में कुछ संगठनाएं होती है, गांव में कुछ सरकारी विभाग होते हैं, तो ये सारे लोगों ने मिलके अगर आ जाते हैं यहाँ पे, अगर काफी अच्छी तरीके से आपस में अगर एक तरह से निर्णय लेते हैं और कोई भी बीमारी आए, जैसे कोविड आता है, आपने देखा होगा काफी हद तरीके से आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने मेंटेन किया कि कोई भी परिस्थिति में 5 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं आ पाएंगे, या जो भी है आपको आपके घर में ही रहना पड़ेगा. तो इस तरीके की अगर हम लोग परिस्थिति हम लोग तैयार करते हैं गांव में पशुओं के बारे में,
तो हम लोग काफी अच्छी तरीके से लोक सहभाग के माध्यम से पशु का जो जो बीमारी है, लंपी स्किन डिसीज नाम की बीमारी है, ये काफी हद तक हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि गांव में जब ऐसी कोई बीमारी आ जाती है या गांव में बीमारी आने की संभावना अधिक होती है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में टीकाकरण कर लेना चाहिए। टीकाकरण करने के पहले हम लोगों ने जो गांव में माहिती देने वाले लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से वो माहिती हम दे सकते हैं। लाउड स्पीकर हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजा सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए, लोग सारे लोग इकट्ठा आ जाए। और एक जो भी टीम होती है, वैक्सीनेशन की टीम होती है, टीकाकरण की टीम होती है, वो टीकाकरण की टीम हम लोग अच्छे से उसका जो कार्य है वो अच्छे से कर सकते हैं। देखिए आप गांव में जो माहिती बांटने वाले लोग हैं वो देखिए किस तरीके से घूम रहे हैं, जगह जगह जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों का जो अवेयरनेस है, लोगों को माहिती है वो किस तरीके से दी जाती है। यहाँ से देखिए कि जनवाणी के माध्यम से या जो छोटे रेडियो स्टेशन होते हैं उसके माध्यम, लोकल रेडियो स्टेशन है उसके माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो यहाँ देखिए कुछ रैलियाँ निकलती है गाँव में। यहाँ देखिए कि गांव के लोगों की सभाएं बुलाई जाती है और उसमें डिसीजन मेकिंग हो जाता है कि निर्णय लेता है कि हम लोगों को इस तरीके से काम करना है। तो हम लोग यदि इस तरीके से लोगों को इकट्ठा लाते हैं, लोगों के माध्यम से हम लोग कोई निर्णय लेते हैं और उसकी अमल बजावनी हम लोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोक सहभाग की बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता है। जिस तरीके से मनुष्य प्राणियों में संसर्गजन्य बीमारी होती है, उसी तरीके से यह जो बीमारी है हम लोगों को यदि उसको रोकना है, उसका रोकथाम करना है, नियंत्रण करना है, तो इस तरीके की हम लोगों ने जो प्रोसीजर है वो उसको करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात, अगर कोई अच्छे गांव में मीटिंगें होती है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रबंधन रणनीति तैयार कर सकते हैं। गांव में वैक्सीनेशन करना तो टीकाकरण करना तो कैसे करना, टीकाकरण कब करने का। उसके बाद मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग पे हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, मार्केटिंग को नियंत्रण कर सकते हैं। कोई बाजार भरता है गाँव में, बाजार को हम बंद कर सकते हैं। दूसरे गांव से कोई पशु आता है उसको हम रोक सकते हैं। गांव का पशु जो दूसरे गांव में जाता है उसको हम रोक सकते हैं। नया कोई पशु आता है तो गांव में एक अलग तरीके से हम लोग उसका कमरा बना सकते हैं, उसको कुछ 10-15 दिन तक उसको हम लोग अलग रखेंगे। तो इस तरीके की जो है, ये जो परिस्थितियां है, ये गांव की परिस्थितियां हम लोग लोक सहभाग के माध्यम से हम लोग तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसे कि समझ लीजिए स्वच्छता मुहिम है, स्वच्छता मुहिम भी गांव में आप लोग चला सकते हैं। आप तरह तरह के जो लोगों के जो पशु बाड़े उसको हम लोग देख सकते हैं, सब लोग मिलके साफ सफाई कर सकते हैं। गांव में नालियां होती है, नालियां को हम लोग साफ कर सकते हैं। गांव के जो पशु बाड़े हैं उसको हम लोग क्लीनलीनेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है ये प्रबंधन रणनीतियों में आती है। तो ये गांव का जो लोक सहभाग है ये बहुत जरूरी होता है। पशुशाला में फॉगिंग होती है, पशुशालाएं जो होती है इस तरह के, देखिए यहाँ पे पशुशाला में फ्लॉगिंग हो रही है, फॉगिंग। तो इस तरीके की फॉगिंग भी ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों का इकट्ठा आना, फिर उसके माध्यम से ये सारी एक्टिविटीज को करना, तो ये लोक सहभाग का ये एक उपक्रम है। ये उपक्रम हम भी लोग भी चला सकते हैं। और जिस गांव में कभी क्या होता है कि लंपी स्किन नाम की बीमारी है, ये कंट्रोल नहीं होती है, तो उसमें फिर जो स्लॉटरिंग जो होता है, कैंपेनिंग, जो वध अभियान उसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से हम लोग ये देखिए पकड़ कर उसको फिर इस तरीके से करना, फिर वो पशुओं को बाहर ले जाके फेंकना, यहाँ पे देखिए पकड़ रहे हैं। इस तरीके से एक्टिविटी हम लोग लोक सहभाग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो कोई भी परिस्थिति में अगर लंपी स्किन डिसीज को रोकना है, नियंत्रण करना है, तो लोक सहभाग का बहुत अच्छी भूमिका है, उसको हम लोगों ने करना बहुत जरूरी है। તો ખેડૂત ભાઈઓ, આ જો લંપી સ્કિન ડિસીઝ નામનો બીમારી છે, રોગ છે, એમાં લોક ભાગીદારીનું बहुत महत्व છે। તમે ખબર છે જ્યારે તમારે ગામમાં તમે લસીકરણ તમે કરો તો તમે કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં ગામના જો લોકો છે તમે ભેગા થવું જોઈએ, એમાં તમે કોઈ નિર્ણય લેવો જોઈએ। ગામનો રસીકરણ ક્યારે કરવાનું છે, ગામના જો પશુ છે દરેક પશુને રસી મોકલવું જ જોઈએ। પછી ગામના કોઈ નવા પશુ આવવાનું છે એમાં ઉપર પ્રતિબંધ તમે લાગવું જોઈએ। પછી તમે ગામમાં કોઈ બજાર છે એના ઉપર પ્રતિબંધ તમે લાગવું જોઈએ। પછી તમે કોઈ નવા પશુ ગામમાં આવવાનું છે એમાં તમે એક જગ્યા તમે રાખવું જોઈએ કઈ દિવસ, 10 થી 15 દિવસ સુધી। તો આ રીતે તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં રસીકરણની જો સ્ટ્રેટેજી છે, એનો જે અમલ બજાવણી છે, એનો જો લોક ભાગીદારી છે, આ બધા જો લોકો ભેગા આવી જાય એમાં થઈ શકે છે। તો લોક ભાગીદારી એમાં બહુ જરૂરી છે। કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે જો કોવિડ પરિસ્થિતિમાં શું થયું છે, એમાં છે કે ભાઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, એમાં
નિયમ ચાલતું હતું, પણ આ જ રીતે તમે પશુપાલનમાં તમે કરવાનું છે. આ બીમારી પણ તમે કરી શકાય. તમે ગામના કોઈ લોક જો તમે અહીંયા આ ભેગા થયા છે, એમાં કોઈ ડિસિઝન થવાનું છે. અહીંયા તમે જો એક રેલી છે, આ તે અવેરનેસ છે, એમાં તમે જો કે ભાઈ ઢંઢેરો પીટને વાળો જો માણસ છે, આ કેવી રીતે કામ કરે છે. અહીંયા તમે જો ઢંઢેરો પીટને વાળો જો માણસ છે, અહીંયા તમે જો એક ટીમ છે, એમાં જો તમે વેક્સિનેશન ચાલુ છે, અહીંયા તમે જો રસીકરણ ચાલુ છે, અહીંયા તમે જો કે ભાઈ પશુ શેડમાં જો ફોગિંગ છે, આ કેવી રીતે કરી શકાય છે. પછી જ્યારે નિયંત્રણ ન થઈ શકે તમારા ગામમાં, એવી રીતે તમે સ્લોટરિંગ પણ તમે કરી શકાય. તો એવી રીતે ઝુંબેશ જે પણ ચાલે છે, આ લોક સહભાગની ઉપર નિર્ભર કરે છે. તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે ભેગા થાય, સારું રીતે તમે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા તમારામાં છે, તો તમે સારું રીતે लोक भागीदारी तुम्हें कर शकाय. किसान भाइयों, ये जो लंपी स्किन नाम की जो बीमारी होती है, इसमें वार्षिक टीकाकरण होता है, लेकिन इसमें गोट पॉक्स जो टीका होता है 1 मिलीलीटर पशु जो होता है 4 महीने के ऊपर के उम्र के पशु में दिया जाता है. और इसमें जब पशु को टीका लगाते हैं तो 50% पशुओं में सूजन आ जाती है. हमने देखा होगा, कोविड में भी हमने देखा होगा, थोड़ा बहुत सूजन आ जाती है, हम लोगों को कुछ देर तक बैठना पड़ता था. उसी तरीके से इसमें भी थोड़ी सी सूजन आ जाती है. तो ये अच्छी बात है, हमको भी पता चलता है कि कुछ रिएक्शन देखने को मिलती है. और कुछ दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उसमें उत्पादन भी दूध का कुछ दिनों तक कम हो जाता है. तो इस तरीके से जो लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी परिस्थिति में टीकाकरण करना बहुत जरूरी होता है. ખેડૂત ભાઈઓ, જ્યારે લંપી સ્કિન ડિસીઝ નામની જે પણ શક્યતા છે એનો ઓછું કરવા માટે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે લોક સહભાગી માધ્યમથી, લોક ભાગીદારીથી માધ્યમથી વાર્ષિક રસીકરણ તમે અસરકારક થાય. તમે ગોટ પોક્સ રસી તમે મોકલી શકાય 1 મિલીલીટર પ્રતિ પશુ, અને 4 મહિનાની જે ઉપર આયુવાળા જે ઉંમરના પશુ છે એમાં તમે આપી શકાય. અને ઇનોક્યુલેશનના સમયે જ્યારે તમે સુઈ આપતા હોય, એમાં શું થાય કે 50% પશુઓમાં તમે સોજો જોવા મળે છે. અને આ સામાન્ય છે, કોઈ તમે સિરિયસ થવાની વાત નથી. પરંતુ રસીકરણ પછી પણ જો દૂધ ઉત્પાદન છે આ થોડા ઘટાડો થાય છે, આ તમે જોવા મળે છે. પણ તમે રસી આપો તો डेफिनेटली તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે લાભ ભવિષ્યમાં મળે છે. अभी लंपी स्किन के नियंत्रण में, टीकाकरण में लोक सहभाग कैसे होता है, यहाँ मैं आपको एक दिखाऊंगा. आप देखिए इसमें किस तरीके से, देखिए देखिए बंद करना. सवाल ना आधारित है. हाँ, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर हम लोग पशुशाला में जितने भी गांव की होती है, इसको अगर हम लोग समझ लीजिए लोकसभा माध्यम से पशुशाला जितनी होती है, गांव के लोग होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, इसको अगर हम लोग सब इकट्ठा करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से इसमें होता है. अब यहाँ देखिए एक जो पशु चिकित्सक जो है लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं. यहाँ पे देखिए गांव में जो गाय है उसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस किया जा रहा है. तो इस तरीके से हम लोग इसमें लोक भागीदारी हम लोग दे सकते हैं. और जो नया पशु है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव में अगर समझ लीजिए नए खरीदी पशु, अगर समझ लो आपको जो आने से 28 दिन तक पहले तुम्हें टीका लगाना चाहिए. नए खरीदी पशु, गए पशु को झुंड में अगर लगाना है आपको, तो वो भी आपको टीकाकरण करने की बहुत जरूरी है. और आपको एक पशु को दूसरी जगह अगर आपको ले जाना है, समझ लीजिए दूसरे मार्केट में ले जाना है, दूसरे के गांव में ले जाना है, तो आपको 1 महीने पहले या 28 दिन पहले भी आपको टीका लगाना जरूरी है. तो ખેડૂત ભાઈઓ શું થાય કે ભાઈ નવા ખરીદેલા જો પશુ છે એનો તમે
ટોળાની શરૂઆતના પહેલે 28 દિવસ પહેલા તમે રસી આપવું જોઈએ. તમે બીજું ગામમાં તમે આ લઈ જવાનું છે પશુ, તો તમે 28 દિવસ પહેલા પણ તમે રસી મોકલવું જોઈએ. એના શું થાય કે એના ઇમ્યુનિટી તૈયાર થઈ જાય. બીજું ગામમાં જ આવે તો આ પશુમાં લંપી સ્किन डिसीज થવાની શક્યતા ઓછી છે. अभी हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि पशु का जो बाड़ा होता है, जो पशु का घर होता है किसान भाइयों, ये स्वच्छ रखना चाहिए, उसको साफ सफाई करना चाहिए। हमारा पशु अ, साहब बोलते हैं उसमें लेकिन उसमें देखिए सूर्य प्रकाश आ रहा है, हवा का आवागमन हो रहा है। ખેડૂત ભાઈઓ તમે જોઈ શકાય અહીંયા કે દેખ સૂર્યપ્રકાશ છે, હવા આવી રહી છે અને પાણીનો સંચય નથી, બોલते हैं એવી રીતે તમે મેનેજ કરવું જોઈએ। रोगग्रस्त पशु को जो किसान भाइयों आपको स्वस्थ पशु से अलग करना चाहिए। यहाँ देखिए आप एक पशु को अलग किया है, तो तंदुरुस्त पशुમાંથી રોગગ્રસ્ત પશુ છે આ પણ તમે અલગ પાડવું જોઈએ। એવી રીતે તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મેનેજમેન્ટ કરવું જોઈએ। અને किसान भाइयों, खेडूत भाइयों, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ हम पशु बांधते हैं वहाँ पे मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है, वहाँ को हम लोग को नियंत्रित करना चाहिए। और 5 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको हम लोगों ने कम से कम वहाँ पे फवारनी करना चाहिए, फॉगिंग करना चाहिए। हमारे जो जानवर होते हैं वहाँ उसके ऊपर उसको मुंह बांध कर उसको इंसेक्ट जो भी होगा उसको हम लोगों ने बाह्य परजीवी नाशक उस पर फवारनी करना चाहिए, लेकिन उसका मुंह बांध के सबसे इम्पोर्टेंट है। और पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए और पेट के कीड़े मारने की दवा भी टाइम टाइम पर देना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि पेट के अंदर के कीड़े क्या होते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता कम कर देते हैं। तो अगर पेट के कीड़े मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोग प्रतिकारक क्षमता बनी रहेगी और लंपी स्किन डिसीज नाम की जो बीमारी है ये होने की क्षमता और ये संभावना ये कम हो जाएंगी। तो ખેડૂત ભાઈઓ શું કરવાનું છે કે તમે માખીઓ જે મચ્છર છે ઈતરડી એના નિયંત્રણ કરવું જોઈએ। 5 કિલોમીટરના જો એરિયા છે એમાં તમે ફોગિંગ કરવું જોઈએ। ગાયના જો મોડા છે એમાં તમે બાંધીને એના ઉપર પરોપજીવી જંતુનાશક જો દવા છે એનો છંટકાવ કરવો જોઈએ અને પશુ ચિકિત્સકની મદદથી સલાહ અનુસાર અને જો પેટની કીડે મારવાની જે દવા છે આ પણ તમે આપવું જોઈએ। તો એના કારણે શું થાય કે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા પણ વધે, મેન્ટેન થઈ જાય અને લંપી સ્કિન ડિસીઝ जो बीमारी છે આ થવાની શક્યતા ઓછી થાય। ખેડૂત भाइयों, किसान भाइयों, रोगग्रस्त और स्वस्थ पशु को जो अलग अलग दाना देना चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ पे अलग रखा है, इससे यहाँ से इसको अलग किया गया क्योंकि बीमार पशु है। इसका जो पानी देखिए, इसको पानी हमने बोले अलग दिया, इसका जो खाद्य देखिए इसको अलग दिया। तो એવી રીતે તમે ખેડૂત ભાઈઓ તમે કરવું જોઈએ। જો ભેગા પશુ છે એમાંથી જો રોગી પશુ છે એને તમે અલગ કરવું જોઈએ, એનો પાણી, દાણા, ચારા, ખોરાક, પાણી જા તમે अलग રાખવું જોઈએ। અને प्रकोप खेडूत किसान भाइयों, प्रकोप के दौरान जो है जो चराई होती है उसको आप लोगों ने रोकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लार होती है वो टपकती है, आंखों में से अश्रु आते हैं। उसके बाद जो पशु जो चराई के लिए लेके जाते हैं पशु को, जो आदमी होते हैं उसके माध्यम से भी जो बीमारी होती है फैलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो આ બહુ સારું છે કે ભાઈ ખેડૂત ભાઈઓ કે રોગચાળા દરમિયાન તમે ગોચરતે ચરતા તમે અટકાવ કરવું જોઈએ। એવી રીતે તમે બાંધો તમારા પશુઓનો તો એમાં સારું રીતે તમે વ્યવસ્થાપન કરી શકાય। उसके बाद किसान भाइयों, जो जानवर की त्वचा होती है हमेशा जो पशुपालक होते हैं उन्होंने देखना चाहिए। उसके बाद साफ सफाई करना चाहिए। आज के दौर में तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि जानवर ही खुद अपनी जो त्वचा की सफाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने फार्म के ऊपर तैयार कर सकते हैं। तो ખેડૂત ભાઈઓ, તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પશુઓની ત્વચા અને શરીરની તપાસણી કરવું જોઈએ અને જો પશુ છે એનો દેખભાલ કરવું જોઈએ। किसान भाइयों, पशुओं को लंपी स्किन डिसीज में आपने अच्छी खुराक देना चाहिए। खुराक में विटामिन ए हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ए, डी, ई, इस तरीके के हम लोगों ने सप्लीमेंट देना चाहिए। उसके बाद मिनरल मिक्सचर देना चाहिए और जो भी है संतुलित आहार देना चाहिए। अच्छे से पानी, स्वच्छ पानी देना चाहिए, चारा अच्छा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो पशु हमारा काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा। दूसरी बात, यहाँ हम खाना देते हैं, दाना देते हैं, जो मेंजर होती है जो दाना रखते हैं उसको भी साफ करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी मक्खियाँ बैठती है, वहाँ पे भी काफ़ी कीड़े होते हैं, उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी होती है। તો ખેડૂત ભાઈઓ, તમે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા સારું રાખવા માટે તમે સારું રીતે સંતુલિત ભોજન તમે આપવું જોઈએ, જેમાં તમે ખનિજ મિશ્રણ આપવું જોઈએ, ઝીંક, સેલેનિયમ, વિટામિન એ, ડી, ઈ। આ શું થાય કે સપ્લિમેન્ટની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધી જાય તો પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ તમે આપવું જોઈએ। તો એ તમે કોઈ પણ પશુ ચિકિત્સકની એમાં મદદ લેવી શકાય અને આહારમાં છાશ, દહીંનો તમે ઉપયોગ પણ કરી શકાય।
તો એવી રીતે તમે કરો તો જો સ્ટ્રેસ છે પશુમાં આ પણ સ્ટ્રેસ તમે ઓછું કરી શકાય. अभी हम लोग देखेंगे कि जब ये सारी चीजें हो जाती है, लंपी स्किन बीमारी में छोटे छोटे पशु होते हैं वो बीमार हो जाते हैं निमोनिया से, वो मर जाते हैं. तो उसमें भी कोई भी परिस्थिति में हम लोगों ने किसान भाइयों उसका निपटारा अच्छे तरीके से करना चाहिए. उसको दूर गांव से लेके जाना चाहिए. वहाँ 6x8 और 8 फीट खोल ऐसा उसको गड्ढा खोद के उसको गाड़ना चाहिए अच्छे से. यहाँ देखिए लोग, ये सब लोक सहभागिता है, लोक भागीदारी है. इस तरीके से अगर लोग काम करेंगे सब मिलके तो गांव में कोई भी पशु होगा वो बीमार होगा, मरे भी जाएगा, तो वो बीमार पशु के जो जंतु होते हैं या विषाणु होते हैं या वायरस होते हैं वो दूसरे पशु में नहीं जाएंगे. तो इस तरीके की जो भागीदारी होती है, लोक भागीदारी, वो उसमें होना बहुत जरूरी होती है. तो ખેડૂત ભાઈઓ નાનું પશુ છે, પશુ કેવી રીતે મૃત છે, કે એના માટે તમે કોઈ પણ પશુનો યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ. આ જોયો તમે અહીંયા લોક ભાગીદારી કેવી રીતે છે, એવી રીતે તમે ગામમાં તમે કરવું જોઈએ. दूसरी बात क्या है किसान भाइयों, जहां भी पशु मर गया था, हाँ, उसका जो साफ सफाई है उसकी साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए. उसको जो चूना होता है, चूने का पानी होता है, उसके ऊपर आपने डालना चाहिए, ताकि क्या हो जाएंगे यहाँ के जो विषाणु है या वायरस है वो भी यहाँ पे मर सकते हैं. और दूसरी बात है कि जो भी ये होता है, कुछ घास होता है या कुछ कचरा होता है, वो भी साफ सफाई करना चाहिए. तो इस तरीके से साफ सफाई अगर हम करेंगे तो काफी हद तक हम लोग यहाँ से नियंत्रण पा सकते हैं. तो ખેડૂત ભાઈઓ, તમે જો જે વિસ્તાર અને વાસ્તવમાં જ્યારે પશુ મૃત્યુ પામ્યા હતા તેને પણ તમે સેનિટાઈઝ કરવાની बहुत जरूरियत છે. अब ખેડૂત भाइयों, किसान भाइयों, आखिर हम ये देखेंगे कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए. बहुत जरूरी है, किसान भाइयों ने क्या क्या करना चाहिए. तो प्रकोप के समय पशु का जो बाजार है ये तुमको बंद करना चाहिए. अगर कोई बाजार बंद करने के लिए क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा, गांव में मीटिंग लेना पड़ेगा, ग्राम पंचायत की सभा करना पड़ेगा. तो ये पशु के हित के लिए बहुत जरूरी है. दूसरी बात है कि गांव में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पशु का, परिवहन होता है, ये आप लोगों ने बंद करना बहुत जरूरी है. कोई एक गांव से दूसरे गांव पशु नहीं आएगा, दूसरे गांव से एक गांव में पशु, दूसरे अपने गांव में पशु नहीं, ये इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है. और पशु को बाजार में भी कोई नहीं लेके जाएगा. इस तरीके की सब लोगों ने नियम बनाना चाहिए. और अगर कोई पशु लाता भी है तो उसको देखिए आप यहाँ पे क्वारंटाइन किया है, कुछ दिनों के लिए कुछ अलग बाड़े में उसको रखा गया है. और कोई अगर गांव में अगर पशु का कोई ट्रक आता है तो उसको कोई भी हालत में उसको निर्जंतुकीकरण करना चाहिए. उसको जो है आजकल कई सारी दवाई आती है, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो वो भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं. और जो रोगी पशु होते हैं लंपी स्किन डिसीज से, उसके जो रस्सियां होती है, हम लोग क्या करते हैं, पशुपालक उसको लेके जाते हैं कहाँ पे, पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में. तो इसमें भी, इसके माध्यम से भी जो इन्फेक्शन है वो फैलता है. तो इसको भी हम लोगों ने उसकी साफ सफाई करना चाहिए. और जो भी है एक सुई से निरोगी पशु और रोगी पशु और निरोगी पशु दोनों पशु में टीकाकरण नहीं करना चाहिए. तो कोई भी हालत में आपको अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग सुई रखना चाहिए. ये भी हम लोगों को देखना चाहिए कि भाई हमारे गांव में जो भी टीकाकरण के लिए आदमी आ रहे हैं वो टीकाकरण के आदमी किस तरीके से टीकाकरण कर रहे हैं. तो इसमें लोक भागीदारी की भी जरूरत होती है, मॉनिटरिंग की जरूरत होती है. तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है. તો ખેડૂત ભાઈઓ, રોગચાળા દરમિયાન તમે બાજાર બંધ કરવું રાખવું જોઈએ. એવી રીતે પશુનું જો પરિવહન તમે બંધ કરવું જોઈએ. અને જાનવરોને બાજારમાં ન લઈ જવા જોઈએ. અને બજારમાંથી ખરીદેલા નવા પશુને થોડા દિવસો માટે તમે અલગથી બાંધવું જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ. અને બીમાર જાનવરોને તમે જે દોરડું છે આ તમે જંતુ મુક્ત કરવું જોઈએ. પછી જો બીમાર જાનવર છે અને તંદુરસ્તી જાનવર છે તો એક જ સુઈથી રસી આપવું નહીં જતી. એવા તમે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો કેવી રીતે રસીકરણ ચાલી રહ્યા છે એમાં પણ તમે मॉनिटरिंग करवानी बहुत सख्त जरूरत है. दूसरी बात है कि पशुओं के परिवहन के लिए जो भी वाहन आए हैं, अभी हमने बात किया था, इसका निर्जंतुकीकरण आपको करना चाहिए. उसके बाद ये देखिए ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, जो भी पशुपालक बीमार पशु की देखभाल करते उसको देखभाल करते समय किस तरीके से उसको हाथ में, मुंह में, नाक में अपना खुद का उसका किस तरीके से प्रोटेक्शन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. और रोगी पशु का जो देखभाल करते हैं, देखिए हाथ आपको साफ करना पड़ेगा, हमेशा साफ करते रहना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा कि आपके माध्यम से भी कई दूसरे तंदुरुस्त पशु में भी वो वायरस न फैल पाए. तो ये भी आप लोगों ने उसमें ध्यान रखना चाहिए. तो ખેડૂત ભાઈઓ, જો પણ પશુ છે એમાં પરિવહન માટે વાહનોને તમે જંતુમુક્ત કરવું જોઈએ. બીમાર પશુઓને
સંભાળ લેતી વખતે હાથમાં તમે મોજાનો વાપર કરો, મોઢા અને નાકની ઉપર માસ્કનો ઉપયોગ તમે કરવો જોઈએ, હાથ તમે સાફ રાખવું જોઈએ. તો એવી રીતે તમે કાર્ય કરો તો બહુ સારી રીતે તમે આ જો પશુ છે એનો લંપી સ્કિન ડિસીઝ નામની બીમારી તમે તમારો પશુની તમે દેખભાલ કરી શકાય, એને તમે બચાવી શકાય, એને તમે કાળજી લેવી શકાય. तो लंपी स्किन डिसीज में जो किसान भाइयों, अगर आप लोग ये बीमारी आती है तो पशु का अच्छी तरीके से जो हम लोग देखभाल करते हैं और देखभाल करते समय सभी लोग अगर गांव के इकट्ठा आते हैं, एक निर्णय लेते हैं और सभी तरह के पशु के रिलेटेड जितने भी सारी एक्टिविटीज है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पशु की बिक्री हो, चाहे वो दूध की बिक्री हो, चाहे वो पशु और पशु चिकित्सालय हो, इसका बीच का डिस्टेंस हो गया, चाहे वो चरागाह हो, ये सारे स्थिति में जहां जहां पे अगर सभी लोग मिलकर इकट्ठा काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में जो लंपी स्किन डिसीज नाम की बीमारी पे हम काफी अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं. धन्यवाद. ધન્યવાદ. થઈ ગયો. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. સર આપણી સાથે જે પશુપાલકો જોડાયા છે એમને પણ કંઈક પ્રશ્ન છે, તો આપ જો સર પરમિશન આપો તો પશુપાલકોના પ્રશ્નોના સવાલ જવાબ આપણે કરી શકીએ. બેન તમારે શું પ્રશ્ન હતો સર? અત્યારે ચર્ચા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. આપને જે કઈ બી પ્રશ્ન હોય એ આપ સરને પૂછો, જેથી કરીને સર આપના પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે. ઓકે મેમ. મેમ આપણા એક પશુને લંપીનો રોગ લાગુ પડેલો હતો. नहीं, आवाज नहीं आ रही. हेलो, आवाज नहीं आ रही. सर गुजराती समझाશે કે હિન્દી કન્વર્ટ કરવું પડશે? हाँ, हिंदी करो ना. हाँ. ओके सर. सर हमारे एक छोटे से बछड़ी को पग में सूजन आ गई थी, तो उसके पैर में जो पाक जैसा रसी जैसा दिखता है, ऐसा अभी हो रहा है, तो हम क्या करें उसके लिए? हाँ, उसको कोई भी हालत में जो है ना उसके ऊपर जो स्किन के ऊपर अगर ऐसे गांठें आई होगी, गांठें है क्या उसके ऊपर? 2-3 दिखाई देती है, अभी स्टार्टिंग है. हाँ, तो स्टार्टिंग है ना, उसको कोई भी हालत में आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाना चाहिए. छोटा बछड़ा है? हाँ, छोटा बछड़ा है. अभी डॉक्टर को बताया. हाँ, तो उसके नाक से कुछ निकल रहा है? नाक से नहीं, नाक से अभी कोई कुछ निकल नहीं रहा है. अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसा सर ने बोला. अभी स्टार्ट है. ये जो सिचुएशन है ना, ये जो परिस्थिति, ये अभी शुरू हुई है. ये इन्फेक्शन अगर उसके नाक में अगर जाता है तो उसको निमोनिया नाम होने की बीमारी संभावना बहुत अधिक है. तो कोई भी परिस्थिति में उसको जो है उसको सर्दी से बचाना चाहिए. रात को जो हवा चलती है ना, वो हवा से आपको बचाना पड़ेगा. और कभी कभी क्या हो जाता है, बारिश हो रही है ना अभी, वो बारिश के कारण भी कभी कभी बीमारी और ज्यादा फैलने की कोशिश होती है. और उसको रात को बांधते वक्त है ना, बांधते वक्त ऐसे जगह बांधी है कि जो खिड़की को खुली होती है ना, उसके थोड़ा दूर बांधी है, ताकि उसके नाक में हवा न जाए. और उसका जल्दी से जल्दी अगर ट्रीटमेंट करोगे तो उसको निमोनिया नाम की बीमारी भी नहीं होगी. सर उसके लिए हमने फैन आदि रखा है, तो ये रखे या ना रखे? क्या? उसके लिए हमने फैन की आदि की सगवड़ता कर रखी है माखी मच्छर से बचाने के लिए, तो वो चला सकते हैं? हाँ, आप जो है ना, वो अगल बगल के जो है ना, जो भी साफ सफाई वो अच्छे से करना चाहिए. दूसरी बात जो है उसको अलग रखना चाहिए. वो पशु को आपको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे भी पशु को बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा है उसको. और सर उसके पैर में अभी सूजन है और उसमें से रसी जैसा निकल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए तो देखो, अभी उसके ऊपर अगर जो ये गांठें आई होगी, गांठों में अगर कुछ आपको दिख रहा होगा तो उसका वो है या दूसरा है, वो तो पशु चिकित्सक आपको बताएगा दिखने के बाद, क्योंकि अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, ये शुरुआत की स्टेज है. ओके. और इसको आने के लिए टाइम लगेगा उसको. इस रसी को सुखाने के लिए हमें कोई दवा इंजेक्शन ऐसा कुछ मिल सकता है? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जो गोट पॉक्स वैक्सीन वो कितने महीने का है? अगर 6 महीने के ऊपर है तो आप उसको वैक्सीन दे सकते हैं. 6 महीने के नीचे होगा तो कोई देने की. 5 महीने का है. हाँ, तो 5 महीने आप उसको कोई दिक्कत नहीं. 4 महीने के ऊपर तो वैसे भी दे सकते हैं उसको. 1 महीना तो इम्यूनिटी तैयार होने के लिए लगता है, तो आपको. ओके सर. और सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ज्यादा कोई अच्छा खुराक आपके तरीके से? हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी वो 5 महीने का है, तो उसको 6 महीने तक तो आपको तो कोई भी परिस्थिति में अगर दूध वगैरह जो है, या मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जिंक मिलता है, सेलेनियम मिलता है, खुराक मिलती है, जो भी है ना, मिनरल मिक्स मिलता है, ये आपको कोई भी परिस्थिति में 30 ग्राम तो भी देना चाहिए, बहुत जरूरी है. 20 से 30 ग्राम. और सर अभी तो
अभी तो हमने सर को बताया था, यहाँ के डॉक्टर को, उन्होंने अभी रसी देने का मना किया है कि अभी रसी की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो क्या बाद में हमें इससे अच्छा हो जाए तो रसी देने की आवश्यकता है? 6 महीने के बाद तो अगर गांव में अगर आपको दिखता है ये बीमारी फैल रही है, गांव में अगर बीमारी लग रही है आपको, तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर देना ही आपको पड़ेगा। 6 महीने के बाद अगर समझ लो आप समझ लीजिए लंपी स्किन डिसीज नाम की बीमारी खत्म हो चुकी है, गांव में ऐसी कोई केस नहीं मिल रही है, तो आपको डरने की यस जरूरत नहीं है। लेकिन अगल बगल में अगर कोई केसेस मिल रही है तो 6 महीने के, अभी 1 महीना तो उसका वैसे भी अभी 1 महीना बाकी है, तो आप 6 महीने के बाद तो उसको कर सकते हैं ना कभी वैक्सीनेशन। और सर ये डोज वन टाइम ही है यहाँ पे हमें हर साल देना पड़ता है? तो आपको डॉक्टर से मिलके आपको करना पड़ेगा, वो ओके सर। से बात करवा के करना। और सर दूसरा एक, अभी हम टेम्पररी नागरवेल का जो पान होता है, हम पान का पत्ता होता है, तीखा का पाउडर होता है, मीठू गुड़, ऐसा कुछ देता है, तो ये अच्छा है? नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, आपने पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए, जो भी साइंटिफिक है वैज्ञानिक, उसके ओ- हिसाब से आपने काम करना चाहिए, ऐसा और लगता है। सर पशु के लिए आपने एक एंटीसेप्टिक क्रीम बताई थी, तो उसके लिए कोई बेस्ट क्रीम आपकी तरफ से, आप कोई दुकान में नाम? जाओगे, कोई भी बोरोग्लिसरीन वगैरह कोई भी मिलती है, आपको ले सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगी। कोई भी वेटरनरी के जो ये है ना मेडिकल स्टोर है, उसमें भी आपको मिल जाएगी एंटीसेप्टिक क्रीम। ओके। अभी सर हम हिमेक्स हिमेक्स नाम की ट्यूब जैसी वो रखी है, तो वो क्या बेस्ट है? हाँ, तो लगा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन क्या है कि आप लोगों को बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, या कोई थोड़ा सा गर्म पानी है ना, या उसका हाँ। जो फोड़ा है उसको तो हमेशा साफ सफाई करना चाहिए। या ओके। नीचे नीचे जो बैठते हैं ना, उसको काफ़ी गोबर लगता है, मिट्टी लगती है, वो ना, हमको जख्म से उसको साफ करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। वो तो हमने काउमेट आदि लगा रखा है। दूसरा एक सर, उसके पग में जो सूजन है उसमें से रसी निकल रही है, वहां पर हम पाटा लगा सकते हैं? उसमें क्या निकल रही है पैरों से? पैरों से रसी जैसा? रस्सी, पैरों से रस्सी ऐसा निकल रहा है ना, उसको कुछ मार हाँ। वार तो नहीं लगा, कुछ मार तो नहीं लगा, नहीं जख्म जो सर, है ना। मार नहीं लगा है, मार नहीं लगा है, तो उस हाँ, पर हम पट्टा बांध सकते हैं? नहीं पाटा नहीं, पाटा बांधना लंपी स्किन डिसीज ये अलग अलग है, बात ध्यान में रखिए। क्या है कि लंपी स्किन डिसीज में वो उसका टूट गया था कुछ, पैर पैर वगैरह पहले कुछ कोई नहीं इन्फेक्शन। सर, सूजन आ गई थी, और बाद में उसमें से जो उसमें क्या है, उसको 3-4 दिन पहले उसको पैर में सूजन आ गया था, जो खरी का भाग होता है वहां से, और वहां गोल चक्का जैसा हो गया, और अब उसके पर जो रुमाटी जैसा होता है वो चला गया है, और वहां से पानी जैसा चिकना पदार्थ निकलता है। आप एक काम करो, उसको ऊपर है ना, उसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजिए, टिंचर आयोडीन से वगैरह, डेटॉल होगा डेटॉल से साफ कर लीजिए। आपके यहाँ पे हल्दी होती है, तेल होती है, जी जी। हल्दी और तेल या घी होता है ना, उसको मिक्स करवा के भी हाँ आप जी सर। उसको लगा सकते हैं। वो आप करोगे तो घर के घर में आपको उपाय होगा। लेकिन अगर उससे बेस्ट है कि आप नज़दीक के कोई डॉक्टर को अगर दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि मैं तो यहाँ से आपको सुनूंगा, लेकिन हालांकि एक्चुअल में परिस्थिति क्या है, तो ये वो डॉक्टर देख के है ना, वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा, अच्छी सारवार वो दे पाएगा। वो सर क्या है ना, हम हल्दी ये सब तो यूज कर रहे हैं, पर उसमें उसके ऊपर माखी मच्छर आदि बार बार उसके नजीक जा रहा है, तो उसके ऊपर पाटा बांध सकते हैं, कपड़ा लगा सकते हैं, ऐसा कोई? नहीं, कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन कपड़ा आपका अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, कपड़ा बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात है ना कि परिस्थिति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए ओके। मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि इंजेक्शन है ना, वहाँ स्वेलिंग अगर होगा तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी है वो ड्रग्स देगा, एंटीसेप्टिक देगा, एंटीबायोटिक भी देगा। तो ये चीज़ें है ना, वो जो घाव है या परिस्थिति, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे। क्योंकि और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर सही समय पे अगर सही इलाज हो जाए तो वो जानवर के लिए बहुत अच्छा। कहीं ऐसा ना हो जाए सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके माध्यम से निकले जाए, तो क्योंकि छोटा बछड़ा है, तो छोटे बछड़े में क्या होता है कि मिट्टी के मार्फत बहुत सारे जंतु उसमें जाते हैं, ब्लैक वाटर डिसीज होता है, बहुत सारे जाते हैं जानवर में, ये टिटेनस का भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि हमारे नज़दीक अगर कोई पशु चिकित्सक है तो उसकी हम लोगों ने मदद लेना चाहिए। ખૂબ ખૂબ આભાર સર. આપણે સમયના અભાવને ધ્યાનમાં રાખી અને આટલા પ્રશ્નો આપણે લઈએ
અને ત્યાર પછી તમને જે કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે આવતા શુક્રવારે પણ ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનો સેશન રાખવાના છીએ. તો આવતા સેશનમાં પણ તમે બીજા પ્રશ્નો છે એ તમારા સરને પૂછી શકશો. મેમ સર પાસેથી એક આ પીડીએફ મળી શકે તો કંઈક જોજો ને. આ જે વિડીયો હશે એ વિડીયો અમે કામધેનુ યુનિવર્સિટીની ફેસબુક પેજ પર અને કામધેનુ યુનિવર્સિટીની યુટ્યુબ ચેનલ છે, યુટ્યુબ પર જઈને તમે કામધેનુ યુનિવર્સિટી સર્ચ કરશો એટલે એના પર આ વિડીયો અત્યારે જે વિડીયો સાહેબે વિડીયોના માધ્યમથી જે સમજાવ્યું એ વિડીયો તમને એમાં ગમે ત્યારે મળી શકશે. ઓકે મેમ, થેન્ક યુ. તો ફરી એક વખત સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડોક્ટર સાવરકર સાહેબે આપણને લંપી સ્કિન ડિઝીઝ શું છે, આ રોગચાળો કઈ રીતે ફેલાય છે, રોગચાળાના લક્ષણો શું છે, એની સારવાર કઈ રીતે કરી શકાય અને ખાસ કરી અને સોસાયટી એટલે કે લોક સમુદાયની આ રોગચાળાના નિયંત્રણમાં શું ભૂમિકા છે એ વિશે સાહેબે ખૂબ જ વિસ્તૃત માહિતી આપી. આપણા પશુપાલકો છે એમને આ માહિતી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. ફરી એક વખત આજના નિષ્ણાત ડોક્ટર સાવરકર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો પશુપાલક મિત્રો, આજના વિષય માટે બસ આટલું જ. હવે ફરી આપણે આવતા શુક્રવારે એક નવા વિષય, એક નવા વક્તા અને એક નવી માહિતી સાથે ફરી મળવાના છીએ. તો આપ સૌની સુખાકારીમાં વધારો થાય એવી અભ્યર્થના સાથે અમને રજા આપશો. ફરી મળીશું આવતા શુક્રવારે. આભાર. હેલો. હેલો.